so let's start with this. So first up comes your summary, right? So I would say that this was a straightforward summary. I mean, I don't think it was difficult. One should attempt it because first of all, the length was short. है ना? एक तो सबसे पहले ये कि इसमें जैसे एक समरी हम देखेंगे इन द एंड विच वाज प्रीटी लॉन्ग, राइट? सो अगर छोटी सी समरी है तो चांसेस आर कि उसको कर लेना चाहिए राइट अप फ्रंट. So recent important scientific findings have emerged from crossing the boundaries of scientific fields. They stem from physicists collaborating with biologists, sociologists, and others to answer questions about our world. Physicists and the potential collaborators often find their cultures out of sync, right? So यहाँ पे बात हो रही है कि अलग-अलग जो areas के scientific fields के लोग हैं तो they are basically trying to cross the boundaries of their own fields and collaborate. Now they have a problem because obviously इनके culture out of sync है. For one, physicists often discard a lot of information while extracting broad patterns, while scientists, for other scientists, information is not easily disposed. Further, many non-physicists are uncomfortable with mathematical models. Still, the desire to work on something new and different is real, and there are clear benefits from the collision of views. So, different scientific fields के लोग साथ में काम करते हैं तो there are issues because obviously सभी के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन there is a desire to work despite all these problems, right? So physicists have successfully buried their differences on research methods applied in other fields in order to the desire to find answers to baffling scientific questions. What is wrong with this option? So what is wrong is this: successfully buried their differences. See, there is nothing like there were differences and which could created some kind of a bad feeling between them, ill feeling between them, and they buried the differences. ऐसा कुछ भी नहीं mentioned है, right? It is a very strong view, and therefore this goes out. Large datasets and mathematical models in physics research combined with the research methods of non-physicists have yielded important scientific findings. This is not at all like what is given in the passage, that there are different ways of working and still they are overcoming all of that. ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे बहुत straight forward बताया गया है कि ये collaborate करके इनसे और scientific findings इनको मिल रही है. So this is also out. The desire to diversify the research and answer important questions has led to several collaborations. Again, puts it in a tone as if there is no difference of opinion or there is no different way of working. It's a very straightforward, smooth collaboration, right? This is the way it has projected. So this is also out, right? So very easily, I think we can eliminate these three and pick the fourth one. Despite differences in research styles, physicists research collaboration with scholars from other disciplines have yielded important research findings, right? So I would say that this was a pretty easy summary and we should have accepted it gleefully with both our hands. Upfront, एक run बन गया, right? It's like a full toss given to you, the first ball, and you can score 4 from this and feel confident, right? So this increases the confidence. Good, at least एक run बन गया, right? And then we proceed to this passage which we find the job. So when we read initial few sentences, the job of a peer reviewer is thankless. Collectively, academics spend around 70 million hours every year evaluating each other's manuscript on the behalf of scholarly journal. They use no monetary compensation, little of any recognition. So upfront we feel that okay, ये academic publishing, academic review work वगैरह के ऊपर है, तो थोड़ा सा scientific type से जा सकता है, right? Now people who are not from, I mean, maybe you feel a little not very happy about it कि okay, ये पहले नहीं करना चाहिए हमको, तो maybe you can do it later on, no issues. You can move to the other one which are little more concrete and as per your liking, right? But in the end, we will say that this is not difficult. Again, okay, there are 1 or 2 questions which need a little more careful evaluation, but हो जाएगा. तो देखते हैं इसको. The job of a peer reviewer. So peer reviewer क्या होता है? See, जो academics publishing की जो field है, इसमें suppose I have come up with some thesis or I have come up with some proposition, and before I get it published in any journal or any publication, okay, peer will review. Which means मेरे जैसा ही कोई और scholar है, वो उसको review करेगा. Right? And then that review is what is basically given in this. वो review के ऊपर पूरा ये passage. तो ये thankless है, right? Suppose I review somebody's work. So this is saying it's thankless. Collectively, academics spend around 70 million hours every year evaluating each other's manuscripts on the behalf of scholarly journals. And they usually receive no monetary compensation and little very recognition for their effort. तो ये thankless job क्यों है? ना तो कोई पैसे मिलते हैं इसमें, ना कोई recognition मिलता है. Some do it as a way to keep abreast with developments in their field. Some simply see it as a duty to the discipline. Either way, academic publishing would likely crumble without it. तो कुछ लोग फिर भी क्यों कर लेते हैं इसको? क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो अपनी फील्ड में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो वी आर अब्रेस्ट ऑफ दैट. और दूसरा कि यार नहीं ये हमारी साइंटिफिक फील्ड है, इसके लिए हमारी ड्यूटी है, तो लोग इसलिए कर लेते हैं. तो विचेवर वे, एकेडमिक पब्लिशिंग इनके बिना बहुत मुश्किल में आ सकती है.
सो फर्स्ट अप ही सेट्स अप द दिस थिंग बेस की पीयर रिव्यूअर्स का जो काम है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इन द सेंस थैंकलेस है. In recent years, some scientists have begun posting their reviews online, mainly to claim credit for their work. Sites like Publons allow researchers to either share entire referee reports or simply list the journals for whom they have carried out a review. So now people have started posting their this peer reviews online. पहले नहीं होता था ऐसा, अभी होने लगा है. क्यों? ताकि उनको क्रेडिट मिले उनके काम का. अभी तो क्या है, जैसे बोल रहे थे कि ये एक थैंकलेस जॉब है, राइट? इसमें कोई ना आपको कुछ क्रेडिट मिलता है ना कुछ कॉम्पेंसेशन. तो अब यहाँ पे उनको क्रेडिट मिले, राइट? दे वुड बी रिकग्नाइज इन देयर फील्ड. कम से कम कुछ लोग जाने उनको, या उनका काम कहीं ना कहीं उससे बढ़े, तो इसलिए वो पोस्ट करने लगे. और एक पब्लॉन्स करके एक साइट है, तो इसमें रिसर्चर अपना पूरा रेफरी की रिपोर्ट, जो अपनी जो भी रिपोर्ट है वो शेयर कर सकता है, या फिर लिस्ट कर सकता है जर्नल्स जिसके लिए उन्होंने रिव्यू कैरी आउट की. द राइज ऑफ पब्लिक सजेस्ट दैट एकेडमिक्स आर इंक्रीजिंगली प्लेसिंग वैल्यू ऑन द वर्क ऑफ पीयर रिव्यू एंड आस्किंग अदर्स सच एज ग्रांट फंडर्स टू डू द सेम. तो एकेडमिक्स जो, तो ये जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि अब इस चीज के ऊपर जो है इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ती जा रही है, और जो ग्रांट फंडर्स लोग हैं वो भी ऐसा करने के ऊपर रेकमेंड कर रहे हैं बहुत. While that's vital to publish or perish culture of academia, there's also immense value in the data underlying peer review. Sharing peer review data could help journals stamp out fraud, inefficiency, and systemic bias in academic publication. So here he gives some advantages of getting this work basically in the domain, right? कि peer review कराने से और उसको पब्लिश करने से उसका डेटा क्या फायदे हो सकते हैं, राइट? वन इज कि आपको फ्रॉड इससे हट सकते हैं, दूसरा इनएफिशिएंसी कम हो सकती है, और सिस्टमिक बायस घट सकती है. क्योंकि पीयर रिव्यू का डेटा अभी तक पब्लिक होता ही नहीं था, तो अब पीयर रिव्यू का डेटा पब्लिक में आने से ये फायदे होंगे. Peer review data could also help root out bias. Last year's study on peer review data for nearly 24,000 submissions for the to the biomedical journal Eli found that women and non-Westerners were vastly underrepresented. तो ये तक आज तक किसी तक पता ही नहीं था ये बात. Right? Suppose you've done thousands of peer reviews, right? But there was no data. But now there is a data. So from 24,000 submissions, they found that कि इसमें से women और non-Westerners तो है ही नहीं जो रिव्यू कर रहे हैं. तो the whole thing is skewed. Only around one in every 5 reviews was female, and less than 2% were in developing countries. मतलब सारे अंग्रेज लोग ही इसको कर रहे हैं, वेस्टर्नर्स ही कर रहे हैं, और लोग मेल ही कर रहे हैं. Openly publishing peer review data could help journals address another problem in academic publishing: fraudulent peer reviews. अब सपोज करो मैं ए हूँ, राइट? मुझे अपनी कुछ चीज पब्लिश करानी है, तो मुझे पीयर रिव्यू कराना है, तो मैं क्या करूंगा कि एक नकली बी बन जाऊंगा, राइट? आई विल क्रिएट सम नकली अकाउंट बी, एंड आई विल से दैट आई हैव peer reviewed this A work and it is fantastic and I will give it some great review to this. तो अब मैं, ये फ्रॉडुलेंट है ना, दिस इज फ्रॉडुलेंट. तो ऑब्वियसली लोगों को तो लगेगा कि ये ए का काम वाकई में बहुत अच्छा है, जबकि वो हो सकता है कि इट वाज यूजलेस वर्क. तो ये फ्रॉड्स भी खत्म हो जाएंगे. फॉर इंस्टेंस द माइनॉरिटी ऑफ ऑथर्स हैव बीन नोन टू यूज फोनी ईमेल एड्रेसेस. मतलब मैंने यहाँ पे एक नकली ईमेल एड्रेस बना लिया टू पोज एज एन आउटसाइड एक्सपर्ट, एंड आई एम प्रोजेक्टिंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट हियर एंड रिव्यूइंग माय ओन मैन्युस्क्रिप्ट, और मैंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट रिव्यू करके उसको 5 स्टार दे दिया, राइट? तो जनता को तो लगेगा ना कि किसी ने थर्ड पर्सन ने किया है ये. तो इस काइंड ऑफ फ्रॉड विल बी एक्सपोज अगर डेटा आएगा, right? Opponents of open peer review commonly argue that confidentiality is vital to the integrity of review process. Referees may be less critical of manuscripts if their reports are published, especially if they are revealing their identities by signing them. Now, this paragraph tells that ये जो peer review open हो रहा है, डेटा आ रहा है, इसके opponents भी हैं. वो कहते हैं देखो ये जो पीयर रिव्यू है ये कॉन्फिडेंशियल वाली चीज है, इसमें आपने अगर ये पब्लिक कर दिया डेटा, तो सपोज करो कि मैं किसी को बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, सपोज आई एम रिव्यूइंग समबडीज वर्क एंड आई फाइंड इट वेरी यूजलेस, सो आई एम बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ इट. तो हो सकता है कि उसको अच्छी तरीके से नहीं देखा जाए, तो मैं फिर अपनी रिपोर्ट को लेस क्रिटिकल बनाऊँ, राइट? क्योंकि अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो रही है तो मैं उसको लेस क्रिटिकल बनाऊँ. Some also hold concern that open reviewing may deter referees from agreeing to judge manuscript in the first place, or they'll take longer to do so out of fear of scrutiny. इसमें ये भी कंसर्न है कि ओपन रिव्यूइंग से मैं मना ही कर दूंगा कि नहीं मुझे नहीं करना, और दूसरा है कि आई विल टेक लॉन्गर बिकॉज स्क्रूटनी ज्यादा होगी, तो देन आई विल बी वेरी केयरफुल. दीज आर सम ऑफ द डाउन साइड्स ऑफ पब्लिशिंग ओपनली. यस कुशागर. सर इस वाले पैराग्राफ में इट इज सेइंग कि रेफरीज में भी लेस क्रिटिकल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इफ देयर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड रिवील देयर आइडेंटिटीज. सर तो लाइक अगर टेक्निकली देखा जाए तो अगर किसी की आइडेंटिटी उसके रिव्यू से रिवील हो रही है तो उसको मोर क्रिटिकल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मतलब उससे उसका वर्क ही प्रमोट हो रहा है. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो. रेफरी कौन है? सपोज आई एम द पर्सन रिव्यूइंग समबडीज वर्क and B is somebody जिसका वर्क मैं रिव्यू कर रहा हूँ. Now suppose I don't like the work of B and I want to be critical. Suppose I want to give it 1 star. Suppose I am a movie reviewer and I want to give this movie 1 star. But if suppose I give it 1 star and it comes out that okay I have signed it and I have given it 1 star, then there could be some antagonism against me.
ठीक, मतलब लोग फिर मेरे पे चढ़ भी सकते हैं ना, जो इसके अगर फॉलोअर्स होंगे या कुछ होंगे कि यार आपने उसको एक ही स्टार क्यों दिया है यार, ये यू आर अननेसेसरली बीइंग मोर क्रिटिकल। तो मैं थोड़ा सा अपना टोन डिप्लोमेटिक कर लूंगा, मैं थोड़ा मॉडरेटली उसको 2-3 दे दूंगा, 2.5 दे दूंगा, 3.5 दे दूंगा। समझ रहे हो आप कि मेरी आइडेंटिटी आ गई कि यार ये तो बहुत ही रद्दी तुमने क्या थीसिस करी यार, कुछ भी नहीं है ये, राइट। तो इसलिए तो दे विल बी लेस क्रिटिकल, नॉट मोर क्रिटिकल, दे विल बी लेस क्रिटिकल। yes sir, got it. Even when the content of reviews and identity can't be shared publicly, perhaps journal could share the data with outside researchers for study. Or they could release other figures that wouldn't compromise the anonymity of reviews, but might answer important questions about how long the review process takes, how many researcher editor have to reach out to an average to find out geographic distribution. तो इससे कि चलो ठीक है, ये इनके जो चैलेंजेस हैं, इनके जो इश्यूज हैं, ये वैलिड है। तो आप आइडेंटिटी और कंटेंट रिव्यूअर्स का मत रिवील करो, ठीक है। लेकिन आप बाकी की चीजें तो रिवील कर सकते हो, यू कैन रिवील समथिंग विच वोंट कॉम्प्रोमाइज द एनोनिमिटी, और इस तरह की कितना टाइम लगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो। Of course, the opening of data underlying the reviewing process will not fix peer review entirely. It may be the instances where there are valid reasons to keep it hidden and identity of referee is confidential. But the norm should shift from opacity in all cases to opacity only when necessary. तो इसलिए देखो, जरूरी नहीं है कि इससे सब चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन हाँ, अभी क्या होता है कि द नॉर्म इज करेंटली दैट देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज टोटल ओपेसिटी. So we can have opacity on a case-to-case basis. In some situations where it is required that the identity should not be revealed, we will not reveal. Right. So this passage basically talks about this peer review process, how earlier there was no data and that led to a lot of challenges. And then how now this is being focused upon, how the peer review data is going to help the publishing industry. And then what are the challenges of the opponents feel about this. And then what the author has worked around and said that they could be on a case-to-case basis. We can take a look at it, but obviously we should publish some data. Okay, so पैसेज जो था आपका, नाउ व्हाट आई कैप्चर्ड हियर इज दैट कहाँ से उठाया गया था ये। सो एक nature.com करके एक पब्लिकेशन है, राइट। तो यू कैन गो टू दिस साइट एंड यू कैन रीड द होल आर्टिकल इफ यू वांट। तो उसमें से इसने दिस वाज अ 5 year old। तो ये जनरली जो देखो, ये व्हाई आई गॉट दिस, जनरली जो आर्टिकल्स लाते हैं ये, दे विल नॉट ब्रिंग द करंट वंस। ओके, दे विल ब्रिंग 4 year 5 years पुराने, करंट भी ला सकते हैं 1-2 साल पुराने, बट एकदम रिसेंट मैगजीन्स में तो नहीं लाते। जैसे आई कीप गिविंग यू इकोनॉमिस्ट आर्टिकल्स टू रीड, गार्जियन आर्टिकल्स टू रीड, वो अभी रिसेंट वाले नहीं लाएंगे बिकॉज देयर इज अ लाइवलीहुड कि लोगों ने पढ़ रखा होगा उसको। ये थोड़े पुराने लाते हैं, राइट। तो टाइम टू लिफ्ट द व्हील ऑन पीयर रिव्यू, तो दिस इजी, आई मीन ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, ऐसा कोई बहुत साइंटिफिक भी नहीं था, बट इट वॉज गुड आर्टिकल एंड यहाँ से ये लेके आया था। आर्टिकल भी जैसे पैसेज में से वो पूरा आर्टिकल, पूरा पैसेज को नहीं डालते, राइट। दे सिलेक्ट एंड देन क्रिएट अ दिस थिंग, अ पैसेज which can look to be seamless, right। बीच बीच में जब उठा के लाते हैं तो थोड़ा अकल से लगाते हैं, ऐसा नहीं करते कि कई सारी मॉक में हमारे दोस्त लोग, चाहे वो सिमकैट हो या सीएल हो, ऐसा लगेगा कि एक पैराग्राफ कहाँ से उठा लिया, एक पैराग्राफ कुछ भी उठा के जोड़ दिया था। Okay, so this was from Nature magazine. All right. Now let's go to the question. Based on the passage, we can infer the author would most probably support. Okay, so now let's look at which can be easily eliminated and which could pose a challenge. Publicizing peer review data rather than publication of actual reviews. So would author support this, and if not, why not? Anyone? ऑथर ने एंड में तो कहा है कि हाँ, हमें पीयर रिव्यू डेटा पब्लिसाइज करना चाहिए और एक्चुअल रिव्यू को शायद ना करें। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि हर केस में, उसने कहा है कि केस टू केस बेसिस पे आप चाहो तो पूरा रिव्यू मत पब्लिश करो, बट नॉट एवरी टाइम। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस ऑप्शन सपोर्ट्स दैट यू ओनली publicize peer review data rather than the publication actual review. So this is why this is not going to be supported. Preserving the anonymity of reviewers to protect them from criticism. Now, again, same reason why A went out, B also goes out, because he is not mentioned that 100% केस में ऐसा करना चाहिए। उसने कहा हाँ, जहाँ केस टू केस बेसिस पे कर सकते हैं, right? That there may be instances in which there are valid reasons to keep the content of peer reviews hidden and identity of referees confidential. But norm should shift from opacity in all cases to opacity only when necessary. So sometimes it may be done like both these things. Like sometimes you can keep the content hidden and sometimes the identity hidden, but not always. ये जो दोनों ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि दोनों पूरे टाइम ही आपको करने चाहिए, right? So this is why both these options are wrong. More careful screening to ensure the recruitment of content फेमिलियर पीयर रिव्यूअर्स। देखो, ये तो कहीं से कहीं तक इस पर्टिकुलर पैसेज में बात भी नहीं हुई कि कंटेंट फेमिलियर की
कोई आदमी सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड का चैंपियन है तो वो जेनेटिक उसको कर देता है रिव्यू, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है ना कि कंटेंट फेमिलियर पीयर रिव्यूअर्स। तो दिस इज टोटली आउट ऑफ सिलेबस एंड गोज आउट इजीली। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस पीयर रिव्यू प्रोसेस इन एकेडमिक पब्लिशिंग इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड and very general this thing, and which is supported by the passage, right? So B becomes the correct answer here. I would call it easy. I would not call it difficult by any means. Yes, Ashish. सर मैं इसमें ऑप्शन ए को शायद गलत समझ गया। पब्लिसाइजिंग पीयर रिव्यू डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा की ही बात हुई ना यहाँ पे? नहीं 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 यार, आप गलत समझ गए। देखो, दो चीजें हैं। एक तो सपोज करो सपोज मैं हूँ रिव्यूअर, और ये आदमी जो है इसकी मैं कुछ चीज को रिव्यू कर रहा हूँ, इसके आर्टिकल को, पब्लिकेशन को, ये कुछ छापना चाहता है उसको रिव्यू कर रहा हूँ। एक तो चीज है कि मेरा जो डेटा है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या वो है, मैं किस लेट्स से नेशनैलिटी का हूँ, मैं मेल हूँ फीमेल हूँ कि मैं, और मेरे क्या क्रेडेंशियल है नहीं है, राइट, और कितना टाइम मुझे लगा इस पूरी प्रोसेस करने में, ये सब चीजें डेटा है रिव्यू का। और एक्चुअल कंटेंट ऑफ पब्लिकेशन मतलब कि उसका पब्लिकेशन है और उसमें मैंने क्या रिव्यू किया है कि यार ये चीज अच्छी है इसमें, ये चीज अच्छी नहीं है, ये ऐसे ठीक करनी चाहिए। दैट इज द कंटेंट, दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ एक्चुअल रिव्यू। तो यहाँ पे जो बात हुई है नीचे वाले लास्ट पैराग्राफ में, ये इससे पकड़ना है आपको कि देर आर वैलिड रीजंस टू कीप द कंटेंट ऑफ पीयर रिव्यूज हिडन एंड आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल। तो ये जो डेटा है वो ये है कि किसने किया है, क्या है, ये सब चीजें। ओके, तो ये दोनों जो ऑप्शन है इसलिए गलत है। ओके सर, ओके, गॉट इट। According to the passage, which the following is the only reason not given in favor of making peer review data public? So which is not given? एक तो peer review को पब्लिक करने के नॉट मेकिंग कि नहीं किया जाए, राइट। तीन रीजन दिए गए कि क्यों पब्लिक किया जाए, एक रीजन नहीं दिया गया। इट कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड रिव्यूअर्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। देखो, ये तो कहीं नहीं बोला उसने कि अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड रिव्यूअर्स, कि हमें क्वालिफाइड रिव्यूअर्स नहीं मिलते हैं या देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ क्वालिफाइड रिव्यूअर्स कमिंग इन। दिस इज नॉट गिवन। ओके, वी विल कीप इट। इट वुड हाईलाइट द जेंडर एंड रेस बायसेस, ये तो दिया हुआ है कि इससे आपको पीयर रिव्यू कुड हेल्प रूट आउट बायस, राइट, नॉन वेस्टर्नर्स और फीमेल के वेरी क्लियर एग्जांपल इज गिवन। तो दिस इज अ रीजन। इट विल डील विद पीयर रिव्यू फ्रॉड सच एज ऑथर पब्लिशिंग बोगस रिव्यूज, ये भी बहुत क्लियरली बताया उसने कि लोग फोनी ईमेल एड्रेसेस को यूज कर लेते हैं, राइट, वेरी क्लियरली गिवन। दिस इज आल्सो गिवन। इट कुड एड्रेस वेरियस इनएफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, और इसको ये लिखा हुआ है स्टैम्प आउट फ्रॉड, इनएफिशिएंसी एंड सिस्टमिक बायस इन एकेडमिक पब्लिशिंग। So these three have been given as the reasons, whereas this has not been given, that it can tackle the problem of selecting appropriately qualified. So this also I would call it an easy question only. I mean, I would not call it difficult by any stretch of imagination. You can, I mean, there is absolutely no confusion here. In fact, इन दोनों क्वेश्चन में देखोगे आपकी ऐसा कोई भी नहीं है ऑप्शन जो कि आपको लगे कि यार ये दो साथ में जो हो सकते हैं। आई मीन, इफ यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज, इफ यू, दैट इज अ बिग इफ ऑफ कोर्स। Let's go to the next one. According to the passage, some are opposed to making peer reviews public for all of the following reasons except. Now यहाँ पे ये वाला पैसेज आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा, opponents of peer review, right? तो people have raised what kind of issues that अगर peer review छपा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके तीन रीजन है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है। डिलेज द मैन्युस्क्रिप्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस एज रिव्यूअर्स वुड टेक लॉन्गर टू राइट द रिव्यू, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इट विल टेक लॉन्गर टू डू सो आउट ऑफ fear of scrutiny, so very clearly given there, right? So this goes out. Makes reviewers reluctant to review manuscripts, especially if these are critical of the submitted work, ये भी लिखा हुआ है। ये भैया वो ये लिखा हुआ है, they may be less critical of manuscript if the reports are published, especially if they're revealing their identities by signing them ना, तो ये भी साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। Leaves the reviewer unexposed to unwarranted and unjustified, देखो कितना खूबसूरती से इसमें बताइए। अच्छा, क्या है प्रॉब्लम है इसमें? हु विल टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस कुशाल। सर एक्सपोज्ड होता तो शायद ठीक होता। एक्सपोज्ड होता तो सही होता, बिल्कुल। सी दिस इज अ अनएक्सपोज्ड थोड़ी है, लीव्स द रिव्यूअर्स एक्सपोज्ड। सी ये क्वेश्चन जो है इसको आप बिना पैसेज पढ़े भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अब्सर्ड कि some are opposed to making for the following reasons, leave the reviewers unexposed to unwarranted, ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है। leaves the reviewers exposed to unwarranted and unjustified criticism, ये होता तो बिल्कुल सही होता है। तो this becomes the answer,
डेटा's reviewers for producing honest if critical reviews that are about it. ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि वो critical reviews को नहीं डालता हूँ, right? So this is a reason. So third was a very clear answer. I mean, I would call it moderate because ये miss हो सकता था किसी से, right? You could have missed this in a hurry. But otherwise ये अगर पकड़ लिया तो आप उसको बहुत ही आसानी से कर दो. All of the following are listed as reasons why academics choose to review other scholars' work except. Now this was a question where a little bit of a this thing. अभी तक इन तीनों क्वेश्चन में से कोई भी if or but नहीं था, कोई भी दो ऑप्शन क्लोज नहीं थे. This one is the first question in this passage where you have a little bit of a problem of choice between which two. Now tell me, इसमें से कौन से दो आपको लगते हैं जिसमें कि there'll be little bit of a difficulty in choosing the correct answer. बताइए. Sir, C and D. C and D, correct. C and D are the ones where you could have a problem because 1 and 2 can be easily eliminated. It is a form of service to academic community. ये बहुत clearly लिखा है इसने यहाँ पे कि duty to the discipline. Some see it as a duty to the discipline, तो इसलिए वो करते हैं, right? So this is very well given there. It helps them keep current with cutting edge ideas. ये भी दिया हुआ है कि उनको they keep abreast of developments in their field, right? So this is also very clearly given. तो ये दोनों तो निपट गए वैसे ही, है ना? Now you are left with these two. It is seen as an opportunity to expand their influence in the academic community. Some use this as an opportunity to publicize their own review work. Now let's try to figure out which one, because obviously थोड़ा सा इसमें दोनों में हो सकता है ना? तो यहाँ पे पढ़ के देखते हैं कि some do it as a way to keep abreast with development, some see it as a duty. Either way, likely crumble. In recent years, some scientists have begun posting the review online mainly to claim credit for their work. तो ऐसा कुछ है क्या कि some use this as an opportunity to publicize their own review work? तो can we go with this, publicize their own review work, claim credit? तो लगता है कि है ये. अभी C वाला चेक करते हैं. It is seen as an opportunity to expand their influence in the academic community. ये अपनी जो वो expand करने की बात हुई, तो ऐसा कहीं है क्या कि they want to increase their influence in the academic community? तो somebody might say कि हाँ हो सकता है कि it is seen as an opportunity to expand their influence in the academic community. But अगर हम fourth को देखेंगे तो ये directly दिया हुआ है वहाँ पे mainly claim credit for their work, which means publicize their own work, right? Posting the review online mainly to claim credit for their work. तो इसलिए हम इसमें fourth को सही मान लेंगे कि दिया हुआ है. This is the reason. And third, it is seen as an opportunity to expand their influence. ये directly support नहीं किया गया, इसलिए इसको निकाला. थोड़ा सा tricky था ये. I agree. How many found this to be quite tricky? Please raise your hand. Yes. So fine. I hope now it is clear because ये दिया हुआ. See, the lesson to be learned here is that इस तरह की situation में go back and see and check, okay, double check, because if you try to rely on your memory and कि नहीं अभी वापस क्या check करना है इतना ये, तो then you might kind of make a wrong choice. और दूसरा कि अगर बहुत फिर भी लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो छोड़ दो उसको. मैं सजेशन इज डोंट स्पेंड मोर देन अ रीजनेबल टाइम. एक आध मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है, छोड़ दो, देन मूव ऑन. ओके, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. तो अभी तक इसमें एक मिला है हमें ऐसा क्वेश्चन, है ना. वी विल काउंट. यस अनुज. सर मतलब आपके अकॉर्डिंग आइडियल टाइम क्या था इस पूरे पैसेज को कंप्लीट करने का इन एग्जाम ये आप नहीं देखो, ये आई कांट से ना ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज देयर आर पीपल हु कैन डू दिस इन 7 minutes आल्सो एंड देयर आर पीपल हु कैन नॉट डू दिस इन 10 minutes आल्सो. तो ये तो आपकी बिकॉज हाँ जी, रीडेबिलिटी वाइज तो काफी सिंपल था, मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्टी थी नहीं. बट दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें लाइक कौन से क्वेश्चन? मेरे को तो एक ही लगा ये वाला. और कौन से क्वेश्चन? हाँ, ये सेकंड, ये फिफ्थ वाला एंड थर्ड वाला थोड़ा सा मुझे लगा डिफिकल्ट बोल दूंगा इसको मैं. हाँ, और हाँ जी, थर्ड एंड थर्ड वाला, हाँ उसमें बार बार मेरे को बैक एंड पर करना पड़ रहा था. नहीं, ये तो नहीं था. मतलब मेरे हिसाब से तो ये डिफिकल्ट नहीं था ये, बिकॉज इसमें साफ साफ तीनों चीजें साफ साफ दी हुई, बहुत क्लियरली दी हुई. तो ये नहीं था डिफिकल्ट. ओके, आपको अगर डिफिकल्ट लगा है तो दैट्स नॉट गुड थिंग, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं था. देखो, अब दूसरी बात ये है कि अगेन somebody who is aware of this with peer review and academic publishing little bit, तो उसको थोड़ा आसान रहेगा. बट जो टोटली इसमें जो इसको नहीं पता, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. बट अदरवाइज इट वाज नॉट डिफिकल्ट. ओके,
With this, we move to the next question, which is our para completion. Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. Now, यहाँ पे कौन से दो options tricky? Tell me. First and second. First and second, very good. First and second में कि my fellow night owls grab a strong cup of coffee and gather around. I have great news. Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. So very well it could come here. Very well it could come here, no doubt. For a long time our kind has been unfairly maligned. तो उसके बाद में फिर वो बोल रहा है कि पूरा बैकग्राउंड मतलब दे रहा है वो कि ऐसा क्यों क्या हो रहा है ना why this is a great news. तो वो बाद में बता रहा है for a long time kind has been stereotyped as lazy. We were told advised to go to bed early. Now however we are having the last laugh. So now why would it come here actually and not here? बताइए actually answer में यहाँ पे आ रहा है and not here. So what could be the reason? Anyone? Yes, Dipansh. दो वे से देख सकते हैं. एक तो मतलब इट इज काइंड ऑफ सेइंग कि जनरली एक स्टोरी नरेट करते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं कि नाउ इट हैज Now we are having the last laugh. That means हाँ. इसके बाद जो उसका कि why is having the last laugh? Science is officially crowned as superior. Okay. यस फिर वो इसके बाद भी आ सकता था ना. I have great news. तो see आ सकता है. ठीक है. So that if you look at the precedent here, so both I would say are kind of equally this thing. They set up the background well. But और बताइए. ओके अक्षिता. तो मेरे को तो फर्स्ट ही पूरा पूरा लग रहा था, बट देन मैंने सेकंड में बाद में इसलिए मार्क किया क्योंकि जो फॉलोइंग सेंटेंस है इट मे बी अ टैड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. वो मेरे को ना कनेक्ट होते हुए नहीं दिखा जो Yes. ऊपर वाला सेंटेंस है, तो दैट इज व्हाई मैंने फिर सेकंड में करा. अदरवाइज फर्स्ट बिल्कुल पता नहीं एप्ट लग रहा था, तो एग्जाम में तो शायद अगर जल्दी में करना होता तो मैं शायद फर्स्ट ही कर देती. Yes. So that makes it moderate to difficult, I would say, because it's like a great this thing trap you can say. But the point here is that this is a clue here. Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. It may be a tad more complicated than that. तो ये मतलब basically see now we are having the last laugh. It may be a tad more complicated than that. तो ये इसके बाद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये tad more complicated than that क्या हो सकता. लेकिन अगर ये लिखा है कि science has officially crowned us superior to our this thing, तो it may be a tad more complicated means कि वो उसके बाद में फिर describe करेगा कि क्यों हुआ है क्या हुआ है, right? मतलब why it is so. It is not so straightforward, but it is basically there is a reason behind it. It may be a tad more complicated than that. Study published, which you have already seen, suggests that staying up late could be good for brain power. तो ये एक इसके पीछे reason है. और this study यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता because this study refers to this study. And nope, it's legit, and then why it is legit ये बताया, right? So second में आएगा ये, and it is because of this, right? Otherwise ये one में काफी strong contender था. So this was of course that's why this was a really difficult para completion. So I hope that you've been able to understand why this is coming too. And let me go to this was the Guardian passage. A Guardian का passage था. You can read this if you want. Forget the 5 AM start now night owls. अब यहाँ पे देखो इसमें यहाँ से इसने ये बनाया great news है ना. And then for a long time यहाँ पे नहीं आया वो sentence. Our kind has been unfairly maligned, stereotyped as lazy, told we ought to be morning larks, advised to go to bed early so that we can run a marathon. Now however we are having the last laugh. Science has officially crowned us superior to our early rising brethren. Okay, it may be a tad more complicated. तो ये बेसिकली यहाँ पे आके बैठे. ठीक. ओके, सो जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, ये कहाँ से लिया था, क्या था, किस तरीके से बनाया था. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट question. Now this is a little more challenging because this talks about cultivated wheat, cultivated pet food, and fast tracking the approval of cultivated meats, underscore the potential of reduce the negative impacts of intensive. So इसमें UK is a world leader in developing cultivated meat. Approval of a cultivated pet food is an important milestone. If you have to realize the full benefits, government must invest in research and infrastructure. The first UK application for cultivated meat produce remains under assessment with this Food Standard Agency. Previous UK government had been looking at fast tracking the approval. It underscored the potential for new innovation to help reduce. देखो इसमें this sentence talks about some previous UK governments, this thing which doesn't have really any bearing on this
4 sentences, राइट. ये सेंटेंस जो है वो आपको यहाँ बेसिकली बात हो रही है कि भाई फर्स्ट ये जो आपका डेवलपिंग कल्टिवेटेड मीट है, इससे क्या क्या फायदे हैं. तो अगर हम ये पैसेज देखें, ये भी एक गार्डियन से लिया गया था, यूके फर्स्ट यूरोपियन. ये वाला जो सेंटेंस है, दिस प्रीवियस यूके गवर्नमेंट, दिस वाज बेसिकली गिवन मच अबव और अर्लियर देन द एक्चुअल पैसेज. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूके द वर्ल्ड लीडर इन डेवलपिंग वेज कल्टिवेटेड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, राइट. सो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि यूके द वर्ल्ड लीडर, राइट. देन वी गो टू इट अंडरस्टूड द पोटेंशियल फॉर न्यू इनोवेशन. फिर हम 5th पे आ गए. Then first UK application remains under assessment with Food Standards Agency. So ये वाला यहाँ पे आ गया, 3 पे आ गए. और फिर लास्ट में if we are to realize the full potential, 2 पे चले गए. तो if we are to realize the full potential, अब यहाँ पे भी देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं कि वो यहीं पे छोड़ के ये सेंटेंस भी आधा काट दिया, ये सब चीजें भी नहीं इंक्लूड की उसने. So this is how we created the so this became the paragraph and this was the okay. So again, this was a little difficult question, no doubt. This was a difficult one. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Okay, now we go to spices. Passage, interesting passage. Spices are global commodity centuries before European voyages. So European voyages started in 16th century, 15th, 16th century, 17th century. तो ये global commodity थे. They were a complex chain of relations. Yes, consumers had little knowledge of producers and vice versa. Desire for spices helped fuel European colonial empires to create political, military, and commercial networks under a single power. So spices जो थे, they were very coveted, right? Their desire was so much that it helped fuel colonial empires. That means colonialism को fuel किया, right? The colonial empires like Britain or France or Holland, Dutch or Spain, so they created all these networks under a single power. Historians know a fair amount about the supply of spices in Europe during the medieval period. Medieval period में तो colonialism नहीं था, right? Medieval period was around till 1400, 1450. So supply of spices होती थी, the origin, method of transportation, the prices, but less about demand. Why go to such extraordinary effort to procure expensive products from exotic lands? Still, demand was great enough to inspire the voyages of Christopher Columbus, Vasco da Gama, launching the first fateful wave of European colonialism. So he's saying that क्यों इतना spices के पीछे लोग पागल थे, right? Why were they so crazy for these spices, right? Why go to such extraordinary efforts? और वो दूर दूर से exotic land से ले लेके आते थे. So what was it that inspired all these voyages? So why were spices so highly prized in Europe in the centuries from 1000 to 1500? One widely disseminated explanation for medieval demand is that they covered the taste of spoiled meat. Medieval purchasers consumed meat much fresher than what the average treated dweller in the developed world of today has at hand. तो ये जो मीट जो कंज्यूम करते थे वो फ्रेश होती थी, राइट? बिकॉज वहां पे उस टाइम पे कोई रेफ्रिजरेशन स्टोरेज के तो कोई थे ही नहीं, रेफ्रिजरेशन तो अवेलेबल है ही नहीं. तो सब हॉट स्पाइसेस हैव बीन शोन टू सर्व एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट. तो अगर उसमें कुछ स्पाइसेस आप लगा दोगे तो यू कैन प्रिजर्व इट. सॉल्टिंग, स्मोकिंग और ड्राइंग मीट वर अदर मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन. तो ये सब चीजों से आप उसको प्रिजर्व करते हो. Most spices used in cooking began as medical ingredients, and throughout the Middle Ages, spices were used as both medicines and condiments. तो हमें भी पता है कि अभी भी हमारे यहाँ पे भी स्पाइसेस, अजवाइन है, किसी का पेट खराब हो जाता है तो उसको अजवाइन दे देते हैं. हल्दी इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर मेनी ailments, for curing your wounds or even your cough and other things, and because of a lot of medicinal properties. तो स्पाइसेस को हम मेडिसिन के फॉर्म में भी यूज करते हैं. Above all, medical recipes involve the combination of medical and culinary lore in order to balance food's humoral properties and prevent disease. कई फूड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हार्म करती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज करते हैं. मोस्ट स्पाइसेस वर हॉट एंड ड्राई, सो अप्रोप्रिएट इन सॉसेस टू कॉन्ट्रैक्ट द मॉइस्ट एंड वेट प्रॉपर्टीज सपोजिटली पोजेस्ड बाय मोस्ट मीट एंड फिश. तो मीट और फिश जो है वो मोस्टली मॉइस्ट होती है, वेट होती है, तो जो स्पाइसेस होते हैं हॉट और ड्राई होते हैं, तो उससे वो न्यूट्रलाइज करते हैं. So here he gives different reasons, right? As a medicine, as a preservation, to add to the taste, and all of that. Where spices came from was known in vague sense centuries before voyages of Columbus. Just how vague, maybe just by looking at medieval world maps. To the medieval European imagination, east was exotic and alluring. Medieval maps often placed India close to the so-called earthly paradise, the Garden of Eden described in the Bible. तो spices कहाँ से आते थे? तो इसका एक vague sense था लोगों के पास में, और लोग जो है वो ये सोचते थे कि
एग्जॉटिक है ईस्ट, मतलब ईस्ट को बड़ा एग्जॉटिक लैंड समझते थे, एल्योरिंग, बड़ा चार्मिंग है। और इंडिया को जो है वो अर्थली पैराडाइज एकदम समझाया जाता था कि ऑलमोस्ट like a garden of Eden. So India was, of course, the source of spices, right? A lot of spices were sourced from here, and this was also one of the reasons that India became a colony of the Britishers. Geographical knowledge has a lot to do with the perception of spices' relative scarcity and reasons for their high prices. An example of the varying notions of scarcity is the conflicting information about how pepper is harvested. तो ये कह रहा है कि देखो perception, right? ऐसा perception था कि spices बड़े scarce है relatively. एक्चुअली नहीं बोल रहा है कि स्पाइस जो थे वो स्केर्स थे, बोल रहा है देयर वाज अ परसेप्शन, क्योंकि ज्योग्राफिकल नॉलेज लोगों को नहीं थी, और यही रीजन था कि उनकी प्राइस हाई थी। तो देयर वाज अ परसेप्शन ऑफ स्केर्सिटी, नॉट रियल स्केर्सिटी। तो वो वेरिंग नोशंस जो थे वो कहते कि पेपर कैसे हार्वेस्ट करते, तो उसकी कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन थी लोगों के पास। As far back as the 7th century, Europeans thought that pepper in India grew on trees guarded by serpents that would bite and poison anyone who attempted to gather the fruit. तो 7th सेंचुरी तो यूरोपियन तो सोचते थे कि इंडिया में जो पेपर है वो ट्रीज पे उगती है और उसको सर्पेंट्स गाइड करते हैं, और अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको बाइट कर लेंगे। The only way to harvest pepper was to burn the trees, which would drive the snakes underground. Of course, this bit of lore would explain the shriveled black peppercorns, but not white, pink or other colors. तो ये सोचते थे लोग कि पेड़ को जला के आपने सांप को भगा दिया एंड देन, तो वो बोलता है कि इससे आपको जो श्रिवल्ड मीन्स जो ऐसे मुरझाए हुए ब्लैक पेपरकॉर्न वो तो चलो ठीक है, बट फिर व्हाइट, पिंक और अदर कलर्स कैसे एक्सप्लेन करोगे? सो दिस बेसिकली वाज अ लोर, दैट मींस इट वाज जस्ट अ myth that was propagated to perceive, to rather increase the perception of scarcity, कि देखो प्राइस लाना कितना मुश्किल है, वहां पे पेड़ वेड़ जलते हैं, वहां से आती है, तो ऐसा करके वो प्राइस वही बढ़ा है। स्पाइसेस नेवर हैड द enduring allure or power of gold and silver or commercial potential of new products like tobacco, indigo और sugar. तो स्पाइस में इतनी ज्यादा चार्म नहीं था जितना गोल्ड और सिल्वर में हो या फिर tobacco, indigo, but the taste of spices did continue for a while beyond the Middle Ages. As late as 17th century, the English and Dutch were struggling for control of Spice Islands. Dutch in Amsterdam and New York was exchanged by the British for one of Moluccan islands where nutmeg was grown. तो उन्होंने न्यूयॉर्क तक था जो एक्सचेंज कर लिया ब्रिटिश ने नटमेग के लिए, राइट? मतलब कि इन्होंने, ब्रिटेन ने नटमेग दे दिया उसको डच लोगों को और खुद न्यूयॉर्क ले लिया था। यस, सुपर। सर मेरे को पैसेज में एक चीज समझ नहीं आया था कि यहाँ पे पेपर को मतलब स्नेक के साथ बोला और फिर लास्ट में बोला कि व्हाइट पिंक नहीं होता, तो मतलब ब्लैक होने की वजह से वो सेम करके बोला है क्या? मतलब नहीं, बात ये ऑब्जेक्टिव है, यही था? नो नो, इसका मतलब ये है कि what the author is suggesting here is that there are different kinds of peppercorns. Some are black, but there are white, pink और other colors also. तो what he saying कि लोग जो ये इस तरह की बातें फैलाते थे वहां पे कि स्नेक से आपको पेड़ जला के, मतलब स्नेक गार्ड करते हैं तो यू हैव टू बर्न द ट्रीज टू गेट द पेपर, सो दिस वुड हैव एक्सप्लेन्ड दैट व्हाई द पेपरकॉर्न्स वर ब्लैक, right? But this can't explain the white, pink, or other colors. Which means what he's trying to establish that this was more of a rumor, or it was more of a folklore. This was not the reality. This was basically these kind of things were spread. Okay, these were to create the perception of price relative scarcity and the reasons for their high prices. High prices. Suppose I am a trader, okay, and I want to sell peppercorn there. Now, suppose people know that यार ये तो abundantly available है, जाओ वहां से ले आओ जितनी चाहिए, तो उसकी प्राइस नहीं होगी ना। लेकिन इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ स्टोरी देयर, तो देखो इंडिया से लाना पड़ता है, वहां पे पेड़ को जलाना पड़ता है, सांप होते हैं, तो इसलिए महंगी है, तो लोग मान जाते थे उस बात को। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चलो ये सब चीजों से आप ब्लैक तो मान जाओगे, लेकिन अगर कोई आपको व्हाइट, पिंक और अदर कलर बेचेगा तो फिर तो नहीं मानना चाहिए ना। तो ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर दैट दे वर जस्ट ट्राइंग टू फूल पीपल। ऐसा था नहीं, दिस वाज जस्ट अ मिथ। ओके, ऑलराइट। यस सर। Now we look at the source here. This was Yale Global करके एक पब्लिकेशन है येल यूनिवर्सिटी का, वहां पे एक इस तरह का एक आर्टिकल छपा था। यू कैन गो एंड रीड इफ यू वांट द होल थिंग, स्पाइसेस वर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अगेन बीच बीच में से वो पैसेज लिया गया है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस हियर। इन द कंटेंट ऑफ द पैसेज व्हिच द फॉलोइंग कंक्लूजंस कैन नॉट बी रीच्ड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। तो इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड फॉर इट्स स्पाइसेस एंड गोल्ड। देखो स्पाइसेस तक तो ठीक है,
गोल्ड की तो पैसेज में कुछ बात ही नहीं हुई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गोल्ड के बारे में बात हुई है, बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हियर, दैट स्पाइसेस नेवर हैड द enduring allure of or power of gold and silver or the commercial potential of new products. So यहाँ से इंडिया जो है वो इट वाज कॉलोनाइज्ड फॉर स्पाइसेस एंड गोल्ड, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। तो ये तो यहीं पे आंसर हो गया, इसका दूसरे देखने की जरूरत नहीं है। टोबैको वाज मोर मार्केटेबल देन स्पाइसेस, लिखा हुआ है साफ साफ कि they did not have the commercial potential of new products such as tobacco, which means tobacco was more marketable. Spice trade was a driver of colonial expansion, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही कि desire for spices helped fuel colonial empires, है ना, साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे। colonialism was motivated by the demand for spices, ये एक ही बात है, right? These two are the same thing, put differently. So ये is the easy answer. So this was an easy question, I would say. Do you agree? It can be inferred that all of the following contributed to a decline in the allure of spices except. So allure of spices जो थी वो किस लिए थी? एक तो उससे वो आप प्रिजर्व करते थे, राइट, मीट को मच फास्टर, बॉइल्ड मीट का टेस्ट ठीक हो जाता था, और दूसरा आप उसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते थे, राइट, तीसरा टेस्ट वेस्ट के लिए यूज करते थे। तो समथिंग विच इज नॉट वन ऑफ दीज वुड बी द आंसर। So changes in European cuisine, अगर change हो गई cuisine, they are not eating whatever they were earlier eating. So obviously this would lead to the decline in allure of spices. So this is can be inferred. Development of refrigeration. If refrigeration आ गया तो preserve वाली बात खत्म हो गई, तो this is easy elimination. Increase in availability of spices. Decline in the allure of spices. तो अगर availability बढ़ गई तो decline हो गया, ऐसा कहीं लिखा है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। Changes in the system of medical treatment. Yes, some diseases were cured because of this, कुछ ailments के इससे क्योर होते थे, तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चेंज हो गया तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये भी दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज सी। इजी क्वेश्चन है ये भी मेरे हिसाब से। डू वी एग्री? यस कुशाल। फिर इसमें मार्क्स तो 30 करा था, बट इसमें एक डाउट है कि जैसे पैसेज में लिखा हुआ है कि एल्योर ऑफ स्पाइसेस के रीजंस क्या थे, तो सर क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिक्लाइन, तो डिक्लाइन में मतलब हमें वो सारे रीजंस को खुद से नेगेट करके इन्फर करना पड़ेगा ना? यस, देखो मैं अगर कह रहा हूँ कि ए बी और सी, दीज वर द रीजंस व्हाई समथिंग हैपेंड, राइट, नाउ सपोज दैट समथिंग वेंट डाउन, तो ऑब्वियसली दैट मींस कि ये चीज निगेट हो गए। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है ना? बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, which if you read this passage you will find that just जहां पे ये पैसेज खत्म हुआ है उसके बाद में एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एग्जैक्टली ये तीन चीजें लिखी हुई है कि नाउ बिकॉज ऑफ दिस द स्पाइस का धीरे धीरे कम हो गया, लिखी हुई है। तो उसने वो लाइन हटा दी वहां से, एंड ही पुट दिस एज अ इन्फरेंस क्वेश्चन। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा सब भी होता है, तो ये आप यू कैन वेरी वेल इन्फर दिस, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी इन्फर। यस नमन। Sir, can you explain option once again, please? चेंजेस इन यूरोपियन क्विजीन, इसमें क्या डाउट है आपको बताओ? यहाँ पे दिया तो हुआ है कि one widely disseminated explanation for medieval demand was that they covered the taste of spoiled meat. Medieval purchasers consume meat much fresher than what this. तो एक तो ये हो गया कि आपका रेफ्रिजरेशन, राइट, और दूसरा medieval recipes involved the combination of medical and culinary lore in order to balance food's humoral properties and prevent disease. तो जो फूड की जो प्रॉपर्टी है, तो आप अगर फिश और मीट खा रहे हो तो आपको उसको काउंटरैक्ट करने के लिए स्पाइसेस चाहिए, हॉट एंड ड्राई। बट सपोज यू स्टॉप ईटिंग दिस और you change your cuisines, that means your cuisines become more of, let's say, maybe hypothetically vegetarian based, or maybe some other kind of chicken अगर हो गया सपोज, यहाँ तो मीट और फिश जो लिखा है कि वो वेट है, कुछ और अगर पिग कुछ हैम या कुछ और खाने लगे, वो बीफ खाने लगे सपोज, तो उसमें हो सकता है नहीं जरूरत स्पाइस की इतनी उसको काउंटरैक्ट करने के लिए। तो दैट वे यू कैन इन्फर दिस चेंजेस इन यूरोपियन cuisine। cuisine मतलब कि जो यहाँ भी पे खाना फूड खा रहे हो। सर चेंज वर्ड मुझे थोड़ा सा जो चेंज से ही बॉदर तो होगा ना ये डिक्लाइन। यार अगर आप सपोज करो कि कुछ खा रहे हो और स्पाइस यूज कर रहे हो उसमें, सपोज आज नमक की बात करते हैं, आप कुछ अगर एक डिश बनाते हो जिसमें आप नमक डालते रहते हो, सपोज करो कि वो आपने डिश जो है वो प्री कुक्ड आने लगी जिसमें नमक ऑलरेडी डला हुआ होता है, तो आपका डिक्लाइन हो जाएगा ना। या फिर आपने कुछ और खाना शुरू कर दिया उसमें इतना नमक भी नहीं डलेगा, तो चेंज होने से ही तो वो कम हुआ, डिक्लाइन हुआ, यस सर। है ना? सर इसको ऐसे नहीं समझा सकता कि चेंजेस के लिए उसकी डिमांड बढ़ भी सकती है। यहाँ तो डिक्लाइन है ना यार, डिक्लाइन कैसे हो सकता है पूछ रहा है, तो चेंज से तो हो ही सकता है ना डिक्लाइन। आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो यार।
it can be inferred that all of the following contributed to a decline. So which of the three are a probable reason for decline? तो चेंजेस इन यूरोपियन क्विजीन से डिक्लाइन तो हाँ यार कोई कह सकता है कि बढ़ भी सकता है, हाँ तो बढ़ सकता है ना, लेकिन डिक्लाइन तो हो सकता है ना, वो क्यों मना कर रहे हैं? बढ़ भी सकता है, यस एग्रीड, ये हो सकता है वो और ऐसी चीज खाने लगे, लेकिन ये भी तो है ना कि उन्होंने अपनी चेंज ही कर दी, वेजिटेरियन खाने लगे, उनको नहीं चाहिए स्पाइस। Got it. Okay, if a trader bought white peppercorns from India to medieval Europe, all of the following are unlikely to happen except. Now, this is a double negative kind of question, right? So, which means which of the following is likely to happen? तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि which of the following is likely to happen. अगर वो white peppercorn लेके आ गया, तो white, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ना कि if suppose he brings the white peppercorn, then people will ask him कि यार कल तक तो तुम बोलते थे कि वहां पे पेड़ को जलाने से वहां पे सांप भाग जाते हैं, and then you get a peppercorn, you harvest peppercorn, तो अब तो तुम white ले आया, that means तुम्हारी वो स्टोरी गलत थी, ऐसे ही सोचेंगे ना लोग। तो वो ए में दे दिया उसने कि यूरोपियंस वुड डाउट द स्टोरी ऑफ पेपर हार्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर मिल गया मुझे। प्राइस ऑफ स्पाइस वुड डिक्रीज, ये सब बात, ये देखो वो जो प्राइस का लिंक बताया गया है वो परसेप्शन है ऑफ स्केर्सिटी, उससे ये नहीं है कि पेपर कॉर्न ले आएंगे तो वो उसकी स्केर्सिटी खत्म हो गई तो इसलिए प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, ये नहीं है, ये गलत है। ये मिडिवल मैप्स का तो कोई लिंक ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है नेविगेशनल एड से, तो दिस इज अ यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस ऑप्शन। पेपर वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एक्सोटिक, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो व्हाइट पेपर कॉर्न ले आएंगे तो पेपर वुड नॉट बी कंसिडर्ड एक्सोटिक। वन ऑफ द इजी आंसर हियर। इजी नहीं है, थोड़ा ये मॉडरेट से डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आई वुडंट से दिस वाज इजी, बट दिस नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, हाँ एक सेकंड। हाँ बोलिए कुशाग्र। सर एक बार आप पैसेज पे जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। सर इसमें जो ए ऑप्शन है इसको हम क्या यहाँ से इन्फर कर सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है इधर? सर एक सेकंड सर कि यहाँ पे एक लाइन लिखी थी ना कि यूरोपियंस को हमेशा डाउट रहता था उनकी स्टोरीज पे, मतलब हमेशा वो स्केप्टिकल थे उनकी स्टोरी। सर हाँ सर, कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पेपर इज हार्वेस्टेड, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन। नहीं, ये देखो, ये तो एन एग्जांपल ऑफ वेरिंग नोशंस ऑफ स्केर्सिटी इज द कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पेपर इज हार्वेस्टेड। तो नोशन ऑफ स्केर्सिटी मतलब कि क्रिएट किया जाता था स्केर्सिटी कैसे, कि ये की स्टोरी सुन देते थे कि कैसे पेपर हार्वेस्ट की जाती, तो वो ये बोला करते थे कि यार पेपर तो पेड़ों पे ऐसे होती है, सांप होते हैं तो उसको जला के लानी पड़ती है। तो दैट इज हाउ द परसेप्शन ऑफ स्केर्सिटी वाज क्रिएटेड। हाँ तो ये मैं इसी पैराग्राफ से समझना है हमको ये, कि वो अगर व्हाइट पेपर कॉर्न लेके आएंगे तो लोग उनसे यही पूछेंगे ना, यार व्हाइट में तो कोई जला के लाता तो व्हाइट पेपर कॉर्न थोड़ी आता, फिर तो काला हो जाता वो भी, राइट? दैट मीन्स दैट स्टोरी इज नॉट ट्रू, so they start doubting the story. That is what is given in passage in option A, isn't it? yes sir, got it. Yes Akshita. सर आप एक बार बता सकते हो why is fourth not right, मतलब Why would fourth be right as per you telling? If suppose I say that, see, I bring peppercorn from an exotic land of India. India is a land where you get white peppercorn, you get this peppercorn, you get that peppercorn. So now if I suppose I bring it and show to them, then would the pepper be no longer considered exotic? ये कैसा लॉजिक हुआ? Exotic मतलब क्या होता है? As per you, what is exotic? सर ठीक है वो आई अंडरस्टूड, बट वो व्हाइट पेपर कॉर्न को पर्टिकुलरली बोल रहा है ना, तो अगर हाँ मतलब बेसिकली वो ये इम्प्लाई कर सकता है ना कि उसको अलग अलग टाइप के पेपरकॉर्न्स मिलेंगे तो देन जो ओरिजिनल इंटेंट है उसको स्केर्स बताने का वो ही नहीं रह पाएगा। कोई चीज स्केर्स है और मैं आपको लाके दिखा दूं तो वो क्या कम स्केर्स हो जाएगी? मैं अगर बोलता हूँ कि यार देखो ये चीज बहुत रेयर है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत रेयर है, और मैंने ला के आपको दिखा दी, तो क्या ये इस्टेब्लिश हो गया कि रेयर नहीं रही? यार मैंने लाके दिखाई ना, तो मतलब कि मैं बहुत डिफिकल्टी से लाया हूं वहां से, रेयर है, बट रेयर डजंट मीन दैट डजंट एग्जिस्ट। आप थोड़ा ठीक सा है, इसको गॉट गलत इट। समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल समझ आ गया, गॉट इट। देखो एग्जॉटिक मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज अनयूजुअल, समथिंग विच इज मिस्टीरियस, समथिंग डिफरेंट, समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंग, राइट? जो कि मतलब आपको अट्रैक्ट करे। एग्जॉटिक लैंड है ना, एग्जॉटिक चार्मिंग लैंड होती है, एक दिमाग में आपके बनी हुई इमेज।
तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नो लॉन्गर इट विल बी कंसिडर्ड एक्सोटिक, किसी ने आकर आपको दिखा दी तो, बल्कि रादर आपको उसको लगेगा हाँ यार ये तो वाकई में समथिंग रियली वर्थ गोइंग ऑल द वे देयर, राइट, दैट इज एन एक्सोटिक लैंड, वी शुड गो देयर। तो वो व्हाई वुड इट बी नो लॉन्गर एक्सोटिक, बिल्कुल। तो आपने थोड़ा गलत उसको इंटरप्रेट किया है मेरे ख्याल से। In the context of the passage, the people who heard the story of pepper trees being guarded by snakes would be least likely to arrive at the conclusion that, तो जिन लोगों ने स्टोरी सुनी कि पेपर ट्रीज को स्नेक्स गार्ड कर रहे हैं, वो भी लीस्ट लाइकली किस चीज पे कंक्लूजन पे आएंगे? इस कंक्लूजन पे तो आएंगे कि इट इज नो सरप्राइज दैट पेपर सप्लाई सो लिमिटेड, राइट। जो मानेंगे कि हाँ पेपर को गार्ड कर रहे हैं स्नेक्स, तो वो मान जाएंगे, दे विल बी लाइकली टू अराइव एट द कंक्लूजन की कोई सरप्राइज नहीं है कि भाई इतने लिमिटेड है। तो दिस इज नॉट द आंसर। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो टू इंडिया, हाँ भाई वहाँ सांप आप हैं यार, मत जाओ लेने के लिए, दिस ऑल्सो इज लाइकली टू हैपन। पेपर इज कॉस्टली फॉर अ गुड रीजन, यस, ये भी है कि यार इतना देखो इतना मुश्किल से मिलती है तो कॉस्टली है वो। करेक्ट आंसर इज सी हियर, दैट इज व्हाई पेपर इज सो हॉट। सी, ये तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया ना, कि दे वुड नॉट बी लाइकली टू अराइव एट दिस ईयर। पेपर हॉट इसलिए है क्योंकि वो उसको ट्री को गार्ड करते हैं स्नेक्स, है ना, और जला जला के लाते हैं तो वो हॉट हो गई। तो जलाना यहाँ पे क्या है कि आपने लिटरली ले लिया उसको, राइट। हॉट मतलब कोई चीज अगर जल के आई है तो इसका मतलब थोड़ी कि वो हॉट हो गई। हॉट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी होती है हॉट होने की, राइट। सपोज मिर्ची है, तो मिर्ची आप अगर खा रहे हो तो मिर्ची मतलब सपोज करो एक हरी मिर्ची मेरे सामने रखी एंड आई कंज्यूम इट एंड आई फाइंड इट वेरी हॉट, does it mean that it is hot because I've burned the tree from which I've got it? See, I could be, or maybe there is something which is not at all hot, which is very mild, and I have burnt it on the flame, but still I'm consuming it. So it will not be called hot. तो ये hot और वो hot अलग होती है, दो चीजें, right? Which is why this option is the correct answer. Guys, these likely to think that this is why it is so. Okay, so this also a little moderate, I would say. तो ये दोनों क्वेश्चन ये टेस्ट करते थे पूरा का पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, एंड गुड, आई वुड से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बट वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। इसमें कहीं पे भी कोई वेगनेस और इलॉजिकल नहीं है और बहुत ही क्लियर है। अगर आपको फिर भी समझ किसी को नहीं आता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन विद सम maybe some examples or some analogies. Okay, but very good questions, both of them. Okay, let's go to the next passage. This passage is, I mean, I would say not very difficult. इसको पढ़ने में हो सकता है कुछ गलत लगा हो और कुछ लोग गलत हो गए सारे इसमें, तो let's see why what mistakes you made in understanding this. A history of any major technological or industrial advance is inevitably shadowed by less predictable history of unintended consequences and secondary effects. What some economists sometimes call externalities. तो कोई भी चीज अगर हम कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू होता है, कोई एडवांसमेंट होता है, तो उसके बाद उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, जिसको कि एक्सटर्नलिटी कहते हैं। दैट मींस द इन्वेंटर और द ओरिजिनेटर हैड नॉट प्रेडिक्टेड दैट दिस कुड बी यूज्ड फॉर दैट आल्सो, है ना। जैसे कि जिसने वॉशिंग मशीन बनाई है, तो कुड दैट फेलो हैव एवर इमेजिन्ड दैट इट वुड बी यूज्ड इन द exotic land of Punjab to churn out lassi and छाछ and all of those things? ये आपको पता है कि नहीं पता है कि वेडिंग्स जब होती थी वहां पे पंजाब में, तो लोग लस्सी बनाते थे वॉशिंग मशीन में। सो दिस इज एन एक्सटर्नलिटी, राइट, इन अ वेरी सिंपल टर्म, कि जिसने वॉशिंग मशीन बनाई उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये लस्सी बनाने के काम में आ जाएगी वॉशिंग मशीन। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? रेज योर हैंड। ओके, okay, quite a few of you were aware of this, right? So you can always trust Punjabi Sardars to be doing things which are different from others. तो इस तरह से हम यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपके डे टू डे में आप अगर अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारी चीजें से हम इस तरह से करते हैं, राइट, एक्सटर्नलिटी। Sometimes those consequences are innocuous ones, which means harmless or even beneficial. Gutenberg invents the printing press, the literacy rates rise, which cause significant part of reading public to require spectacles, which causes a surge in investment in lens making, which leads to the invention of telescope. तो कैसे आप देखो कि एक प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करने से लोगों को रीडिंग ज्यादा करने लगे, तो चश्मे की जरूरत पड़ गई, फिर लेंस मेकिंग होने लगी, जिससे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बन गए, राइट। सो दीज आर ऑल एक्सटर्नलिटीज। गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया, ही नेवर इमेजिन्ड ऑल दीज थिंग्स. Oftentimes, the secondary effects seem to belong to an entirely different sphere of society. When Wills' career hit upon the idea of air conditioning, the technology is primarily intended for industrial use, ensuring cool, dry air for factories that require low humidity environments. But it touched off one of the largest migrations in the history of US, enabling the rise of metropolitan areas like Phoenix and Las Vegas that barely existed, and Carrier first started tinkering the idea. तो Willis Carrier जो था, इसने एयर कंडीशनिंग बनाई थी, तो उसने फैक्ट्री के लिए बनाई थी कि वहां पे कूल ड्राई एयर रहे, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट है। लेकिन
उसके बाद पता पड़ा कि वो घरों में यूज होने लगा और मेट्रोपॉलिटन एरिया बन गए। फिनिक्स और लास वेगास कंसिडर टू बी डेजर्ट एरियाज, दीज वर वेरी हॉट एरियाज। दुबई और अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वो तो पूरा पूरा है ही एयर कंडीशनिंग पे चल रहा है वो, राइट। तो वेल्लीज कैरियर नेवर हैड नेवर इमेजिन दैट जो उसने फैक्ट्री के लिए चीज बनाई उससे इतना मास रेवोल्यूशन हो जाएगा। Sometimes the unintended consequences comes about when the consumer uses an invention in a surprising way. Edison famously thought his phonograph, which is sometimes called talking machine, would primarily be used to take dictation. Later, innovators discovered a much larger audience willing to pay for musical recordings based on descendants of Edison's original invention. तो जो इसने अपनी टॉकिंग मशीन बनाई थी तो डिक्टाफोन डिक्टेशन के लिए थी, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि इसमें तो गाने भी सुना सकते। In other words, the original invention comes into the world disguised as a plaything, the way animatronic dolls of the mid-1700s inspired Jacquard to invent the first programmable Loon and Charles Babbage to invent the first machine that fit the modern definition of computer, setting the stage for a revolution in programmable technology that would transform 21st century in countless ways. So again, given some more examples of how things which were brought about by some intention then had a totally different application altogether. We live under the gathering storm of modern history's most momentous unintended consequence, carbon-based climate change. Imagine the vast sweep of inventors whose ideas started the Industrial Revolution. All the entrepreneurs and scientists and hobbyists who had a hand in bringing it about. तो अब आते हैं हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर, राइट। जिन्होंने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू किया, जो भी साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, line up 1,000 of them, ask them what they have been hoping to do with their work. Not one would say that their intent had been to deposit enough carbon in the atmosphere to create a greenhouse effect that trapped heat at the surface of the planet. And yet here we are. किसी ने भी नहीं बोला होगा उस टाइम पे कि हम जो भी चीज बना रहे हैं इंडस्ट्री, उससे इतना कार्बन निकलेगा एटमॉस्फेयर में और उससे ट्रैप हो जाएगी हीट एंड ग्लोबल वार्मिंग विल हैपन एंड ऑल दैट. Ethyl, leaded fuel and freon belong to the same general class of secondary effect. Innovations whose unintended consequences stem from some kind of waste byproduct they emit. मतलब ये जो आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे भी जो थे बताए गए हैं, और इसमें जो एथिल और फ्रियोन है, ये डायरेक्टली खुद अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इनके नहीं है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है इनके, उनसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं. Potential health threats of ethyl were visible in 1920s, unlike say the long-term effects of atmospheric carbon built up in early days. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये एथिल है, इसके जो पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स हैं, ये तो 1920s में से विजिबल थे. कार्बन के तो आज हमें समझ में आ रहे हैं. मतलब ये तो क्योर हो जाना चाहिए था, इसको तो somebody should have taken care of this. This is what he's trying to imply by this. Indeed, it is reasonable to see CFCs as a forerunner of kind of threat that we most likely face in the coming decades, as it becomes increasingly possible for individuals or small groups to create new scientific advances. आज की तारीख में individuals और small groups scientific advance काफी आसान हो गया उनके लिए through chemistry or biotechnology or material science, setting off unintended consequences that reverberate on a global scale. तो unintended consequences काफी बढ़ सकते हैं. So this passage was about externality, right? Something which was not intended, which were quite good and beneficial in most of the cases, but then there were some which were unintended, which were not good also. Climate change and then एथिल एंड फ्रियोन. एथिल जो था उसका तो इलाज हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. और आगे के जमाने में इट इज इंक्रीजिंगली इजियर फॉर पीपल टू कम अप विद साइंटिफिक एडवांसेस थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती काफी. So good, interesting passage, very interesting passage, I would say. And this was picked up from New York Times magazine. Okay, so again, you can, if you want, you can go and read. I think I shared also this article. Pretty long article, थोड़ा लंबा था ये, और interesting. You can go and read there. Again, इसमें ये जो आर्टिकल आप पढ़ोगे तो इसमें कम से कम आपको 50-60% आर्टिकल पढ़ लोगे, उसमें ये है ही नहीं पैसा, बाद में आता है ये एंड में जाके, right? So this was in the last fag end of the whole article of this. Okay, we can assume that author would support all of the following views except it has become far easier for people today to bring out innovations with dire worldwide consequences than it was earlier. तो ये तो हम कर सकते हैं. लास्ट पैराग्राफ में यही किया हुआ है कि increasingly it is possible and all that. The emissions caused by large scale use of leaded fuel ought to have been addressed earlier than they were. ये भी है, देखो ये जो है यहाँ से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं. बट द पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स ऑफ एथिल वर विजिबल इन 1920, अनलाइक से लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन. तो इसका मतलब है, इन्फर कर सकते हैं इससे हम कि इट ought to have been addressed than they were. While technological advances in the past have had innocuous or beneficial, more recent advances have the potential to be more threatening globally. So more recent advances have the potential to be more threatening globally. तो
क्या ये सपोर्ट अभी देखते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ लेडेड फ्यूल रादर देन फ्यूल इटसेल्फ वाज रिस्पांसिबल फॉर बिल्डअप, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इथेन और फ्यूल बिलोंग टू द सेम क्लास विद अनइंटेंडेड consequences stem from some kind of by waste product, waste byproduct. So this is also given. Now let's look at the third option. More recent advances have the potential to be more threatening globally. तो ऐसा बोल रहा है क्या कि more threatening, ये बोल रहा है कि इजी ज्यादा पॉसिबल है लोगों के लिए साइंटिफिक एडवांस करना थ्रू केमिस्ट्री ऑफ दिस सेटिंग ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस दैट रिवर्बरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल थ्रू, ये हो सकता है, लेकिन मोर थ्रेटनिंग, मोर और लेस कंपैरिजन नहीं हुआ है। देयर इज नो कंपैरिजन हियर दैट आगे के जो आने वाले हैं वो ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाएंगे, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, दे विल बी थ्रेटनिंग, दे कैन set off unintended consequences, but whether they'll be doing it in at a much higher proportion or lower proportion and all that has not been given here. So therefore, this C option can be said to be not supported. Moderate, I would call it. More rather, मैं moderate से difficulty बोल देता हूँ, because ये थोड़ा सा stretch था आपका imagination. This was, नहीं ये तो easy था, नहीं ये नहीं था, ये थोड़ा difficult था इनका करना, ये तो ठीक है इजी था, ये दोनों इजी थे। ओके, सी नाउ इसमें जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड अपॉन द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, तो मोस्टली, जनरली, यूजुअली, टिपिकली, when should they be used properly? Carrier, Babbage and Edison are mentioned to illustrate the author point that these inventors could not have visualized the eventual impact of their invention on society. Yes, ये तो ठीक है, ये लोगों ने अपना सोच भी नहीं सकते होंगे क्या होने वाला है फाइनली, इवेंचुअल मींस फाइनली। सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ पास्ट इनोवेशंस मोस्टली रिजल्टेड, ये मोस्टली गलत है यहाँ पे, द क्रिएशन ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अगर सपोज करो इसने यहाँ पे लिखा होता कि सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ पास्ट इन्वेंशंस समटाइम्स रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ न्यू इन्वेंशन, दिस इज परफेक्टली वैलिड ऑप्शन, बट मोस्टली से ये गलत हुआ। इन्वेंशंस टिपिकली मींस जनरली एंड अप बीइंग यूज्ड फॉर एंटायरली डिफरेंट, ऐसा नहीं बोल रहा है। समटाइम्स यहाँ पे लिखा होता है कि समटाइम्स इन्वेंशंस एंड अप बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, देन दिस आल्सो वुड हैव बीन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये दोनों ऑप्शन आपके इसके कारण हट गए। डिस्पाइट द ओरिजिनल इंटेंशन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस विल आर्ग्यू बेनिफिशियल। डिस्पाइट ओरिजिनल इंटेंशन मतलब थोड़ी है कोई ऐसा थोड़ी है कि उसने सोचा था कि ये बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, तो दिस डिस्पाइट द ओरिजिनल इंटेंशन इज रॉन्ग। A is the correct answer. Okay, I hope it's clear to everybody. Yes, Sonali. सर वो बहुत असर्टिवली नहीं कह रहा है कि मोस्टली जो इंटेंड करते हैं वो नहीं होता है, मतलब वो अनइंटेंडेडली बहुत सारे पर्पसेस हो जाते हैं, मतलब बहुत असर्टिव नहीं है लाइक इतने पैराग्राफ में। जैसे आप कह रहे हो कि समटाइम्स होना चाहिए, पर वो ऐसा पैराग्राफ साउंड कर रहा है कि मोस्टली ऐसा ही होता है। क्यों मोस्टली ऐसे ही होता है, ऐसा कहाँ लग रहा है आपको? मतलब वो इतना असर्टिवली यही बोली जा रहा है कि डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, तो आइडिया आ रहा है। एक मिनट, ठीक है, एडिसन है ना, बैबेज, हाँ हाँ तो दिया है उसने। क्या लिखा है देखो, कैरियर, एडिसन, बैबेज, राइट, विल्स के। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे तो सिर्फ कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं, दुनिया में क्या इतने ही इन्वेंशन हुए हैं? आपके हिसाब से नहीं। दुनिया में तो हजारों लाखों इन्वेंशन हो चुके होंगे, नहीं? तो यहाँ हाँ पे तो जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इससे आप मोस्टली कैसे बोल सकते हो कि मोस्टली जो भी इन्वेंशन होता है उसका रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ न्यू इन्वेंशन होता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? और टिपिकली राइट। जो भी इन्वेंशन होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट पर्पस होते हैं, तो वो भी नहीं बोल सकते, है ना? रॉन्ग, यही बोल सकते हैं कि दीज इन्वेंटर्स कुड नॉट हैव विजुअलाइज्ड। वो यही तो कह रहा है कि इन्होंने ये कभी सोच भी नहीं सकता था। कैरियर का नाम क्या दिया इसने, दिया ना कि when career hit upon the idea but it touched off one of the largest migrations, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर sometimes this comes when the invention is surprising way, तो इसने भी नहीं सोचा होगा कभी, इसने तो डिक्टेशन के लिए दिया था। तभी मैं तीनों ऑप्शंस में फंस गई थी क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस वो था जो गलत था, इसलिए मैं शायद कंफ्यूज हो गई थी। ओके यस, अक्षिता। सर एक बार पैसेज पे जाएंगे। सर ये सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में तो इसने लिखा है ना, ऑफन टाइम्स द सेकेंडरी इफेक्ट सीम टू बिलोंग टू एन एंटायरली डिफरेंट स्फेयर ऑफ सोसाइटी।
तो So, और जैसा सोनाली ने बोला वो हर जगह तो एक प्राइमरीली एक मिनट देखो, गलत मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? Oftentimes, the secondary effects seem to belong to an entirely different sphere of society, which means sometimes when the inventions have got unintended consequences, उनमें से most of the times वो जो unintended consequences होते हैं वो किसी और sphere of society के लिए होते हैं। Now you get the point कि suppose करो 100 इन्वेंशन हुए, उसमें से 3 के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए, लेकिन इन 3 में से ज्यादातर के जो इफेक्ट होते हैं सेकेंडरी, वो दूसरे ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी में होते हैं। वो ऑफन टाइम्स इसके लिए बोल रहा है, वो इसके लिए नहीं बोल रहा है। अभी आया समझ में आपको? हाँ हाँ गॉट इट हम्म गॉट इट सर सी दिस इज लाइक अ ट्रैप ना, कि अगर आपने इसको पढ़ लिया कि ऑफन टाइम, तो आप जो व्हाट सोनाली वाज सेइंग देन दैट वुड बी करेक्ट। यार यही तो लिखा है इसमें कि ऑफन टाइम्स द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बिलोंग टू, I mean happen, often times there are unintended consequences of inventions। तो वो नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि often times the secondary effects whenever they happen then they belong to a different sphere of society। that means कि वो उस तो वो मैंने ना ये इसी सब से इन्फर कर लिया कि प्राइमरीली इंटेंडेड कुछ और पर्पस था बट फिर कुछ और हो गया, तो दैट इज व्हाई मेरे को थर्ड वाला बेटर now लगा। it is okay ना, now हाँ you हाँ गॉट see, मतलब आप देखो कि अच्छे से बनते हैं जब ये जो ऑप्शन बनाते हैं, और ये सोच समझ के मतलब बनाते हैं कि ट्रैप में भी कैसे फंसेंगे लोग। Now they can do it, I mean as I've been saying that these people can do it because उन्हें सिर्फ 3 पेपर बनाने हैं ना, जो हम लोग मॉक वॉक बनाते हैं इतने सारे, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इस लेवल तक जा सके, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ थॉट एंड केयर। इस क्वेश्चन को करने का मेथड यही था बस भाई, कि आप टिपिकली और मोस्टली हटा दो, दो दो ऑप्शन, तो ये वहीं से वहीं के वहीं तक हटा दो, और ये डिस्पाइट वाला समझ लो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अदरवाइज यू कैन मेक इट एज डिफिकल्ट एज यू वांट। आई रिकॉर्डेड मॉडरेट, चलो। Which of the following best convey the main point of the first paragraph? तो मेन पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया कि हिस्ट्री ऑफ दिस इज इनहेरेंटली shadowed by this sometimes those consequences are innocuous, sometimes this invents this, ये हो गया ना। तो secondary effects of most major technological invented have turned out to be, देखो ये फिर ये मोस्ट गलत, ये गलत है ना। The full impact of technological advances cannot be estimated in the short run, as the ripple effects often extend far beyond the original। ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। Just a minute, I'm coming to it। Entire impact should be evaluated by the boost, मतलब कि कोई भी चीज का जो है वो इम्पैक्ट जब तक कि सेकेंडरी उसका इफेक्ट नहीं है वो तब तक वो नहीं हो सकता। क्या, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी वन। सॉरी, ओके, यस कुशागर बताइए। सर इसमें फर्स्ट ऑप्शन में मोस्ट वाली बात तो ठीक है आपकी, बट सर उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है कि इफ दे वर अनइंटेंडेड हैव टर्न्ड आउट टू बी बेनिफिशियल, सर तो मेन पॉइंट में वो खाली वो बेनिफिशियल वाला पॉइंट नहीं ना, वो तो बस बोल रहा है कि अनइंटेंडेड नहीं 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 कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे। नहीं 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 यार, इसको आप ये हटाओ ना यहाँ से। The secondary effect of most major technological advances in the past have turned out to be beneficial, इसको ऐसे पढ़ो ना। सो ये तो गलत है ना, ऐसा थोड़ी है कि सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मोस्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव टर्न्ड आउट टू बी बेनिफिशियल हो रहा है, कुछ इनॉक्युअस हुए हैं तो कुछ ये भी हुए हैं, वो हाँ लिखा सर, हुआ है उसमें। मतलब वो गलत है। मेरा डाउट वही था कि उसमें वो भी गलत है ना, कि मतलब बेनिफिशियल वाली चीज की नहीं, सारे बेनिफिशियल वाली थोड़े। चीज ही गलत है, वो बेनिफिशियल वाली चीज ही गलत है। देखो ये लिखा हुआ है कि, जैसे ये देखो आप, समटाइम्स दोज कॉन्सिक्वेंसेज आर इनॉक्युअस और इवन बेनिफिशियल, है ना। और वो क्या बोल रहा है, यस सर, कि मतलब वो वो सारे बोल ही रहा है कि बेनिफिशियल मोस्ट थे। हैव बी टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल, तो ये तो गलत है ना, इसका मतलब रॉन्ग वो क्वांटिफायर यूज हो गया।
Yes, Okay. sir. Got it. Got it. Thanks. Yes, Akshita. सर मैंने सेकंड मार्क किया था बट शायद पेपर में फर्स्ट राइट बता रहा है। नहीं नहीं, कहाँ से बताएगा फर्स्ट राइट? यही नहीं, हाँ सर मेरे में कौन ए से पेपर दिख रहा में है। गलत बता रहा है? ये कहाँ से भी दिखा? मेरे वाले हाँ में जी सर। टोटल पे हाँ सर आपके में हाँ, ए मार्क्ड है आंसर, गलत है मैंने वो बी मार्क वाला। किया है तो। सो सॉरी, मतलब आई थिंक वो जिसने भी वो मतलब वो जिसने वो डाला ना वो गलत मार्क कर दिया यार, सॉरी। बट इट द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो ऐड योर दिस थिंग, मतलब ऐड कर लो आप अपना स्कोर। आई डोंट नो आई हाउ आई मिस्ड इट। करेक्ट आंसर इज सेकंड जे। ओके, द एंटायर इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल शुड बी इवैल्यूएटेड, बिल्कुल गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू जज एन इन्वेंशन नॉट बाय इमीडिएट बट बाय होलिस्टिक। तो मतलब कि ये भी एक तरह से सभी स्वीपिंग स्टेटमेंट है कि सारे के सारे जो इन्वेंशन है उसको सेकेंडरी इम्पैक्ट से ही आप जज करोगे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ये भी। सेकंड वॉज दी ओनली करेक्ट आंसर। आई थिंक उसमें गलत है तो आप ठीक करना, सॉरी फॉर दैट। The author lists all of the following examples as externalities of major technological advances, technical advances, except. Extension, बहुत easy question है। Extension of phonograph, build-up of CFC, cooling and dehumidifying factories through air conditioning. So ये तो ओरिजिनल था ना इंटेंट, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफाइंग ऑफ फैक्ट्रीज, वो तो रेजिडेंस में यूज होने लगा, दैट इज द एक्सटर्नैलिटी, राइट? तो दिस इज नॉट द आंसर। I mean, this is the answer. C is the answer, right? So this was easy. Okay, any doubt in this? Or any questions? Cool. Let's go to the, this one was not difficult. Okay, this one was not difficult. Known real researcher of human behavior would say that gender is all nature or all nurture. Despite this empirical truth, researchers who study the biological basis often face political pushback. Many people are uncomfortable with the idea gender is not purely a social construct. There is a political preference for gender to be only a reflection of social factors. So basically, this passage is about the gender जो है, is it it is governed by biology or nature or social factors. तो कोई भी रिसर्चर बोल रहे हैं कि ये नहीं कहेगा कि जेंडर या तो सारा का सारा आपका बायोलॉजी से है या सारा एनवायरनमेंट से, सोशल फैक्टर से है। तो इसके बावजूद जो बेचारे बायोलॉजिकल बेसिस की स्टडी करते हैं रिसर्चर्स, वो उनको पॉलिटिकल पुशबैक मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है इस आइडिया से कि जेंडर इज नॉट प्योरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट, दे वांट इट टू बी प्योरली अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ये जो ट्रांसजेंडर ये सारी चीजें चल रही है, वोकिज्म एंड ऑल दैट इज बिकॉज दिस देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेफरेंस एंड जनरली बाय द डेमोक्रेट्स इन द यूएस, और जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो लेफ्ट लिबरल्स जिनको बोलते हैं, उनका पॉलिटिकल प्रेफरेंस। ये जो स्टेटमेंट है, एविडेंस फॉर अ बायोलॉजिकल बेसिस सर्टेनली डजंट मीन वी शुड बी कॉम्प्लेसेंट इन द फेस ऑफ सेक्सिज्म। दिस इज अ totally different idea. So now if you see this is from a publication called Quads। जब एक publication है Quads करके, वहां से लिया गया ये। तो इसको भी ऐसे अलग अलग करके इसने निकाला था। I don't know if real researcher would say it's all nature or nurture. Despite this political pushback, many people are comfortable with the idea. There's a political preference. But ये sentence इसमें दिया हुआ है जो अलग से which doesn't have any bearing on this. All right. Okay. Let's look at the next question. Yet each day the flock produced eggs with calcareous shells, although they apparently had not ingested any calcium. Early in this century, a young Breton schoolboy who prepared himself for a scientific career began to notice a strange fact about hens. So as they, right, so they means these hens, scratched the soil, they constantly seem to be pecking at the specks of mica, siliceous material dotting the ground. तो ये जो हेन्स हैं, ये जब पोल्ट्री यार्ड में स्क्रैच कर दी सॉइल को, तो वहां पे स्पेक्स ऑफ माइका थे, राइट, जिनको वो चुभ रही थी। जस्ट एक सेकंड और लगेगा मुझे।
sorry. No one could explain to Louis Kervan why the chicken selected mica, or each time bird was killed for the family cooking pot, no trace of mica could be found in its gizzard. So ये सब synthesis connected है. If you put this here, yet each day, तो उसका सेंटेंस का फ्लो आइडिया ब्रेक हो जाएगा. फिर थर्ड में आ जाएगा, yet each day the flock produced eggs with calcareous shell. Apparently they had not ingested any calcium from the land, they were entirely lacking in calcium. So it took Kervran many years to establish the chicken was transmuting one element into the other. तो तब जाके उनको उसको बाद में समझ आया. तो ये थर्ड में आके बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा. Yet each day they produce eggs जिसमें कैल्शियम के शेल्स थे, जबकि उन्होंने कैल्शियम तो लिया ही, माइका लिया था, तो वो माइका कहाँ गायब हो गया, राइट? दे कुड नॉट फाइंड माइका. और कैल्शियम जो कि नहीं कंज्यूम कर रहे थे, उसके बावजूद दे हैव कैल्शियस शेल्स उनके एग्स में. तो ये बहुत टाइम के बाद में दिस फेलो कुड एस्टैब्लिश दैट द माइका वाज बीइंग ट्रांसम्यूटेड इनटू कैल्शियम, राइट? सो दैट्स द लर्निंग ऑफ दिस पैसेज. दिस वन वाज फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स. तो इसमें यहाँ पे ये कोई पैराग्राफ था, वहां से उसने उठाया इसको. अर्ली दिस सेंचुरी young Britain's schoolboy went noted that describes the soil. No one could explain. Yet नहीं यूज किया. देखो यहाँ पे इसने yet नहीं यूज किया, इसने ये यहीं पे इसने ऐड कर दिया सेंटेंस, राइट? तो yet करके इसने अलग से बना दिया. तो ये वाला सेंटेंस. Okay, just look at the last passage here. Carnivore, there are 3 common drivers for carnivore human attacks. अच्छा, सब लोग एकदम शांत हो गए, कोई आपको डाउट नहीं आ रहा है क्या अभी? There is a sudden, after that particular question which we discussed, there doesn't seem to be any query. All okay? Please raise your hand if all okay, or if you already gone to sleep. Okay, good, fine. So there are 3 common drivers for carnivore human attacks, some of which are more preventable than others. Natural aggression-based conflicts such as those involving females protecting their young or animals protecting a food source can often be avoided as long as people stay away from those animals or food. तो कार्निवोर ह्यूमन को क्यों अटैक करता है, राइट? उसके 3 और कॉमन ड्राइवर बताए, कुछ जिसमें कि प्रिवेंटेबल है. तो नेचुरल अग्रेशन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसमें कि कोई फीमेल अपने यंग वन को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो they may attack you if you feel endangered, right? Or animal protecting a food source. Carnivores that recognize humans as a means to get food are a different story. As they become more reliant on human food, they might find at campsites or in rubbish bins they become less avoidant of humans. तो अगर जो कार्निवोर है और वो उसको फूड मिल रहा है ह्यूमन की कैंप साइट्स या और कई जगह से, तो वो ह्यूमंस को इतना अवॉइड नहीं करता. लूजिंग दैट इंस्टिंक्टिव फियर रिस्पॉन्स पुट्स देम इनटू मोर सिचुएशंस वेयर दे कुड गेट इनटू एन अल्टरकेशन विद अ ह्यूमन, which often results in the bear being put down by humans. तो losing that instinctive fear, कि वो ह्यूमन से फियर जो था उनको वो हट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो आ जाते हैं कि जहाँ पे ह्यूमंस के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और फिर हो सकता है कि वो मार दिए जाए. फेड बेयर इज अ डेड बेयर से सर्विंग, रेफरिंग टू कॉमन सेइंग अमंग बायोलॉजिस्ट ऑफ कंजर्वेशन. तो अगर कोई बेयर है और वो बेयर ने खा पी लिया है, तो वो आपसे मतलब वो he will not be avoiding you, and then you may kill that bear, right? ह्यूमन उसको मार सकते हैं. तो इस तरह की सेइंग है एक. Predatory or predation related attacks are quite rare, only accounting for 17% of attacks in North America since 1955. They occur when a carnivore views humans as prey and hunts it like it would any other animal. तो predatory और predation means कि वो जैसे लायन है, आप लायन आपको मारने के लिए आ गया, right? तो that is a predatory attack. बट अगर आपने किसी को तंग किया है, जानवर को, या उसको आपसे डर लग रहा है कि आपने उसको थ्रेटन किया और उसने आपके ऊपर अटैक किया, तो दैट्स नॉट अ प्रीडेटरी अटैक. तो प्योर प्रीडेटरी अटैक्स जो हैं, कि जैसे कि जानवर एक कार्निवोर जो है दूसरे एनिमल को मारता है, जैसे कि शेर ने किसी लोमड़ी को मार दिया खाने के लिए, वैसे आपको मार दिया खाने के लिए, वो सिर्फ 17% अटैक्स. Then there are animal attacks provoked by people taking pictures with them or feeding them in natural settings such as national parks, which often end with an animal being euthanized out of precaution. फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप पिक्चर ले रहे हो उनके साथ में या फीड कर रहे हो उनको नेचुरल सेटिंग है, नेशनल पार्क में, तो जिसके कारण फिर एनिमल्स को यूथनाइज्ड आउट ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स उनको मार दिया था जान करके. मतलब अगर सपोज करो कि कोई एनिमल के साथ में आप पिक्चर खिंचा रहे हो नेशनल पार्क में या फिर उसको फीड कर रहे हो और आपके ऊपर अटैक कर दिया उसने,
तो फिर क्या होता है कि वो फिर सभी को अटैक करेगा, then that thing does not is not safe to be left in the national park. So then they euthanize it. That means they kill it, right? Euthanize means give it a death, give it a mercy killing. Eventually, that animal becomes habituated people, and then bad things happen to the animal. And the folks who initially wanted to make that connection don't necessarily realize that. Says Christine Wilkinson, a postdoctoral researcher who is studying coyote human conflicts. After conducting countless postmortems on all type of carnivore human attacks spanning 75 years, his team believes that 50% could have been avoided if humans reacted differently. A 2017 study co-authored by Penterini found that engaging in risky behavior around large carnivores increases likelihood of an attack. वो कह रहा है कि देखिए, अगर सपोज करो आप अलग तरीके से बिहेव करते हो तो 50% अटैक अवॉइड हो सकते थे, और इस तरह के रिस्की बिहेवियर करने से आपके ऊपर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. One of the most common risky behaviors are parents leaving their children to play outside unattended and walking an unleashed dog, according to study. तो आप अगर अपने बच्चों को खेलना छोड़ देते हो unattended, या फिर अपने डॉग को खुला छोड़ देते हो, तो Wilkinson says 60% of coyote attacks involve a dog. People end up in a situation where the dog is being chased or dog chases a coyote. तो एक coyote करके जानवर है, आपने अपने डॉग को खुला छोड़ दिया, तो या तो वो उसके पीछे भागेगा, या वो coyote उसके पीछे भागेगा, या डॉग उसके पीछे भागेगा. So maybe they are walking their dog near a den that's marked, and the coyote wants to escort them away. तो या फिर वो किसी डॉग के साथ में जा रहे हैं पास में, कोयोटे जो उसको बताना चाहते हैं. कई सारी चीजें इसमें दे आर रिलेटेड मोर टू द अमेरिकन वेस्टर्न थिंग्स. हमारे यहाँ पे कई बार ऐसा नहीं भी होता है. Experts believe climate change also plays a part in escalation of human carnivore conflicts, but the correlation still needs to be ironed out. Finite resources become scarcer, carnivores and people coming out more frequent contact, which means more conflict could occur, says Jen Miller. For example, she says there was an uptick in lion attacks in Western India during a drought when lions and people were relying on the same water source. Climate change से भी इंक्रीज होता है कि अगर सेम रिसोर्सेज है, पानी वहां पे नहीं मिल रहा है जंगल में जानवर को, और एक कॉमन सोर्स है पानी का लोगों के उसके, सो दे कैन देन come into contact and then there could be a conflict between them, right? Or attack हो सकता है. Likelihood of human carnivore conflicts appear to be higher in areas of low-income countries dominated by vast rural landscapes and farmland, according to Pentriani's research. There are a lot of working landscapes in global south that are really heterogeneous, and they are interspersed with carnivore habitats, forests, and savannas, which create a lot more opportunity for these encounters just statistically. एक और हो सकता है कि जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे रूरल लैंडस्केप्स, फार्मलैंड है, और जो कि हेट्रोजीनियस है, तो जो फॉरेस्ट है वो काफी नियर बाय हैं, कार्निवोर के हैबिटेट्स नियर बाय होते हैं फार्म्स के. हमने भी कई सारे पढ़े हैं कि बहुत बार जंगल से कोई लायन या लेपर्ड या कुछ आ जाता है गाँव में, right? Because those गाँव or those villages are contiguous to those forests, वो पास ही होते हैं वो, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है इस तरह के में, right? So this passage basically deals in these human carnivore conflicts and what could be the reasons why this happens and how to avoid it, right? And what are the various factors that govern. सो यही है इसमें, पता बेसिकली, और कोई इसमें कोई ऐसा और मेन आइडिया नहीं है, बस यही बात कर रहा है. तो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. ये लिया गया था कैलिबर करके मैगजीन है ना, तो वहाँ पे ये आर्टिकल है, उसके आप पढ़ सकते हो चाहो तो. अगेन लॉन्ग आर्टिकल, इसमें से बीच में से निकाला था इसको. According to the passage, which the following scenarios would most likely exacerbate the frequency of carnivore human conflicts. Exacerbate means worsen. That means कि किस फैक्टर से वो वर्सन हो सकता है. According to attempting to photograph wild animals from within secured viewing areas in national parks and protected zones. देखिए, अगर आप सिक्योर्ड व्यूइंग एरियाज में से ले रहे हो नेशनल पार्क में, तो फिर कहां से वर्स होगा? That's wrong. That's totally wrong. Implementing food waste management strategies to prevent wild animals being attracted to human food sources. तो आप अगर उनको प्रिवेंट कर रहे हो वाइल्ड एनिमल्स को अपने फूड सोर्सेज में आने के लिए, तो दैट्स अ गुड थिंग यू आर डूइंग. यू विल अवॉइड carnivore human conflict. You will not exacerbate the frequency. So this is surely not the answer. Addressing the impact of climate change on the availability of resources. Again, this was given as a factor. So if you are taking care of it, you are surely not exacerbating the frequency. Correct answer is 4. Unleashing dogs by pet owners in areas with known high concentration of large carnivores. ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप डॉग्स को छुट्टा लेके घूमोगे वहां पे, तो आपकी लाइवलीहुड बढ़ जाएगा.
So very clearly given. So this is a very easy question, I would say. Isn't it? According to the passage, what is the significant factor that contributes to the habituation of carnivores to human presence? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है एक तो कि अगर आप as they become more reliant on human food, they might find at campsites or in rubbish bins, they become less avoidant of humans. That means they become habituated to humans. So habituation of carnivores to human presence. The natural aggression exhibited by carnivores exacerbated by human interference, particularly when they are safeguarding their offspring of food sources. So इससे वो habituate हो जाएंगे to human presence or they will attack. It's totally opposite. The increased scarcity of resources due to climate change is forcing carnivores to venture outside their natural. This is going to contribute to habituation, or this is going to again increase the conflict. It's also opposite. Predatory perception of humans as potential prey within the carnivore food chain. तो अगर वो ह्यूमंस हैं तो ये अगर आप मानते हो कि ये शिकार है, पोटेंशियल प्रे है, राइट, तो इससे हैबिचुएट थोड़ी होंगे, इससे तो और मार गिराएंगे आपको. The reduction in carnivores' instinctive fear response resulting from the reliance upon human provided food. Very clearly given here, and therefore this becomes the correct answer. Again, this would be an easy question. Yes, any doubt? No doubt is occurring after that question. I am surprised. उस क्वेश्चन के बाद में किसने हाथ ही नहीं उठाया अभी तक पूछने के लिए. All good? Everyone? Okay, good. Which of the following statement, if false, would be inconsistent? Now, this is again a double negative. So, what is the correct rephrasing? Which of the following, if true, would be consistent? Right? With the concerns raised regarding the drivers of carnivore-human conflicts. तो इसमें से कौन सा true है अगर suppose तो वो consistent होगा with whatever is given regarding drivers of carnivore-human conflicts. Climate change has had negligible effects on the frequency of carnivore-human interaction in affected regions. Now, unfortunately, this was given as the correct answer in the official answer key, and to which people had objected it, but then they did not change the answer. So it remains as one of the biggest controversies, apart from that grandfather clock entropy wala passage of CAT 2021. How many people are aware of this? मतलब कितनों ने I mean, how many of you are aware कि हाँ ये सिचुएशन थी, ये गलत जवाब है, मतलब उन्होंने ए बता दिया आंसर. Climate change has had negligible impacts on the frequency of carnivore-human interactions in the affected regions. तो ये तो बिल्कुल गलत है ना यहाँ पे. This is not consistent, isn't it? बताइए, what's your view? How many are saying? How many are thinking that this is yes, Kushagra? यस सर, वही गलत लगा था सर. तो फिर उन्होंने क्या चेंज करा था क्या बाद में, या फिर यही आंसर था? नहीं चेंज किया था, नहीं चेंज किया. ओके, यस खुशी. मैंने तो सबसे पहले ये रिजेक्ट किया था क्योंकि क्या किया था? मैंने सबसे पहले ये रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट किया था आपने सबसे पहले, बिल्कुल सही किया था. Carnivores lose their instinctive fear of humans when consistently exposed to human food resources. ये तो ट्रू है ना यार, अभी हमने यहाँ पे भी पढ़ा है ना, इसी में तो ये आंसर पैसेज में भी था, तभी मैंने इसमें तो पैसेज आंसर से किया. रिचेक करके मार्क किया था बिकॉज पैसेज में व्हाट इज द लिखा हुआ सिग्निफिकेंट, है. ये इसमें साफ साफ दिया हुआ है. जब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो कैसे आप इसको ये कर सकते हो? ये करेक्ट आंसर है ये. अभी बाकी का देखते हैं. प्रीडेटरी अटैक्स बाय कार्निवोर्स आर अ कॉमन अकरेंस and have steadily increased over the past few decades. ऐसा गलत है ये, ऐसा कॉमन अकरेंस नहीं है. 17% ही है, तो दिस इज रॉन्ग. Human efforts to avoid risky behaviors around large carnivores have proven effective. देखो ये कोई किसी को लग सकता है ये भी सही, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वहां दिया हुआ है कि likely to be increase the likelihood, और अगर 50% कम हो सकता था अगर उन्होंने डिफरेंट किया होता तो. लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि ऐसा हुआ कि ह्यूमन एफर्ट्स हैव प्रूवन इफेक्टिव. तो ऐसा नहीं है ये, दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. तो ये गलत है. करेक्ट आंसर एक्चुअली 2 है, लेकिन उसको मार्क ए किया गया. तो यस खुशी. सर एक जनरली था कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी कि मतलब व्हाई दे हैव गिवन ए एज कैट वाले कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. आई एम वाले देखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, दे हैव नॉट गिवन. अब सी समबडी, ये अगर वेस्टर्न कंट्री होती
तो कोई कोर्ट में ले जाता उनको, वो पूरी कैटी वो कैंसिल करवा देता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर जजमेंट उनको पहले ही लिख देते हैं कि आवर डिसीजन विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल, एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव इट जस्टिफिकेशन टू पीपल। बट दिस इज वेरी रॉन्ग इनफैक्ट। ये और दूसरा एक जो 21 में किया था उन्होंने, वो जग जाहिर है कि those were wrong answers given. So this was a very clear wrong answer. Okay, but anyway, ठीक है तो है, कुछ नहीं कर सकते, सभी के लिए है. Given the insights provided by Pentriani's research and consist which of the following conclusions can be drawn about relationship between landscape heterogeneity and human carnivore? See, landscape heterogeneous जहाँ पे होता है landscape, वहाँ पे carnivore conflict बढ़ जाती है, simple है. Homogeneous landscape with uniform agricultural practices are likely to experience high rate. बिल्कुल गलत है. Landscape heterogeneity characterized by a mix of farmland and habitats inherently reduces, गलत है यहाँ पे, increase होना चाहिए, ये गलत था यहाँ पे. Diversity and interspersion of working landscape with carnivore habitat increase the statistical probability, बिल्कुल सही है. लास्ट पैराग्राफ में यही दिया हुआ है. Low income countries with vast contiguous wilderness areas are less prone, नहीं more prone है. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, वेरी इजी क्वेश्चन. तो इसने शायद इसकी गिल्ट अपनी यहाँ पे दे दी, इतने आसान क्वेश्चन को निकाल मे बी, आई डोंट नो. Cool. Let's go to the. This is a very easy para summary which everybody should. Yes, Khushi. सर कैन यू गो बैक, मेरे में ना क्वेश्चन अलग है कौन इससे सा? पहले. आई थिंक दिस वन 18th ओनली. कौन सा? 18th क्वेश्चन. हाँ बोलिए इसमें. सर इसमें एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीचेक द इंक्रीज. हाँ सर सॉरी 19th. सर 19th में ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन बी. बॉम्बे. राइट राइट राइट. नहीं, इससे आप क्या समझते हो? हैबिचुएशन ऑफ कार्निवोर्स टू ह्यूमन प्रेजेंस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फ्रेज? व्हिच बोलो. मैंने मेरा तो इंटरप्रिटेशन ये था कि ह्यूमन की प्रेजेंस में जो उनका मतलब लाइक मेरे दिमाग में करते हुए ये था कि जो वो फार्मलैंड वाला एग्जांपल दिया हुआ था ना, कि बिकॉज हम कॉन्टिन्यूअस उनके उसमें आ रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग इन आवर लैंड. एक एग्जांपल. नहीं, आप देखो गलत समझ रहे हो. हैबिचुएशन मतलब होता है यूज्ड टू बी हैबिचुएटेड टू समथिंग मींस टू बी यूज्ड टू. नाउ जो यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स कैंप साइट पे फूड छोड़ देते हैं या खाना वाना खिलाते हैं, तो एनिमल यूज टू होने लगते हैं ह्यूमन से, तो वो अटैक नहीं करेंगे. तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कार्निवोर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. तो हैबिचुएशन बेसिकली इज व्हेन दे बिकम अकस्टम्ड टू. तो ये लिखा हुआ ना यहाँ पे कि as they become more reliant on human food, they might find at campsites or rubbish, they become less avoidant of humans. That means they are okay with being in company of humans. Losing that instinctive fear response put them in more situations where they can get into an altercation with a human. तो इनको ये डर नहीं रहता, वो इंसान के साथ में नॉर्मलाइज होने की कोशिश करते हैं, फिर इंसान ही इनको मार देता है, वो अलग बात. तो वो तो फूड से, वो इससे रिलेटेड दिया हुआ ना, रिडक्शन इन द इंस्टिंक्टिव फियर ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है, गॉट इट. Okay, John Cleese told that comedians do not have freedom to be funny. There is always limitation on what they are allowed to say. Particularly worrying because you can only create what we're not checking out anything you say critically. तो ये तो हमारे यहाँ पे भी स्टैंड अप कॉमेडी में है, बहुत सारे मुनव्वर फारूकी और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिनको कि दे बीन कैंसल्ड और अदर लॉट ऑफ criticism they faced and even they were put behind bars. What you have to be able to do is build without knowing where you are going because you've never been there before. That's what creativity is. You have to be allowed to build. A lot of comedians now are sitting there and when they think of something, they say something like, "Can I get away with it? I don't think so. So and so got into trouble and he said said that. So you see what I mean? That's the depth of creativity." तो ये बोलता है कि अगर वो यही सोचते रह जाएंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो वो गलत है. That is the depth of creativity. Comedians are being prevented from saying what they want, and this is the death of this art form. ऐसा कुछ नहीं है कि they are being prevented, right? They are being very cautious, is what he's saying. Must not check what they think and say. They must go where no one has gone before. ये भी बहुत ही सिंपलिस्टिकली तरीके से ले रहा है उसको. Freedom and creativity are essential for comedy. Fear about offending people hinders originality. This looks fine. Creativity and critical thinking cannot work together. ये ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है वो. Comedian must be creative, later be critical. बिल्कुल गलत है. So very easy para summary I would say. तो देखिए आपने 3 में से 2 पैरा समरी इजी थी, है ना. ये पैरा कंपटीशन ये कोई मुश्किल नहीं दिख रहा है.
First phase of globalization occurred long before introduction of either steam or electric by Chinese consumers at all social levels consumed vast continuous spices, fragrant sorry, unusual plants. People of Southeast Asia who lived in forests gave up their traditional livelihoods and completely reoriented their lives. ठीक है. These exchanges, right? So यहाँ पे आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता because these exchanges क्या है? Would opened up some of the routes through which goods and people continued to travel after Columbus traversed the mid-Atlantic. Yet the world of thousands was different from 1492. Travelers who encountered one another were much closer technologically. So यहाँ से यहाँ तक कोई स्कोप नहीं है सेंटेंस में आने का. The Europeans did not invent globalization. They changed and augmented what was already there since 1000. If globalization hadn't yet become, Europeans wouldn't have been able to penetrate the markets. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि उन्होंने तो सिर्फ चेंज किया और बढ़ा दिया जो कि ऑलरेडी 1000 से था. तो 3 में आके ये आराम से बैठ जाए. Right? We can look at the passage. This also is from Yale Global Online. You can go and read there when globalization really began. Okay, let's go to the last question. This was a little difficult para summary because first of all it was long. Yes, Ashish. बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी. हेलो सर, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए. सर आप पिछले वाली समरी में जाएंगे एक बार? ये हाँ जी सर. सर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो प्रिवेंटेड, हाउ इज इट रॉन्ग? who is preventing them? बताओ कहाँ लिखा है prevented? सर इन जनरल दे आर प्रिवेंटेड ना. By whom? यार सपोज करो कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये बोलूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे को जेल में पकड़ के डाल तो नहीं दिया जाएगा. तो उनको कोई बोल थोड़ी रहा है कि तुम ये बोलो या मत बोलो. वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं. वो आप फिर से पढ़ लो इसको. देखो यहाँ पे कि comedians do not have freedom to be funny. There is a limitation on what they are allowed to say. I think now this doesn't mean literally कि उनको किसी ने बोल दिया कि यही बोलो या वो मत बोलो. I think it is particularly worrying because you can only create an atmosphere of freedom where you are not checking anything you say critically before you moving on. मतलब कि आप बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो. What you have to be able to do is build without knowing where you are going because you've never been there before. That's what creativity you have to allow to build. A lot of comedians are now sitting there and thinking, they say something like, "Can I get away with it?" I don't think so. So and so got into trouble. तो इनको भी ये थोड़ी बोल रहा है कि तुम ये बोलो या मत बोलो. वो अपना इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं कि भाई हमें ये चीज बोलने की आजादी है, ये चीज बोलने की नहीं है. तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दे आर बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम सेइंग. ये गलत है ये. एंड दिस इज द डेथ ऑफ दिस आर्ट फॉर्म. देखो यार, इस तरह के ऑप्शन तो वैसे ही गलत मार्क कर दो आप कि इट इज द डेथ ऑफ दिस आर्ट फॉर्म. सी, ये समरी नहीं हो सकती है कि इट इज द डेथ ऑफ दिस आर्ट फॉर्म. ही इज सेइंग दैट राइट. कि बेसिकली दैट्स द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी. यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना ठीक है उसको, लेकिन उसको वो बोल रहा है डेथ ऑफ क्रिएटिविटी, है ना. वो ये भी नहीं बोल रहा है कि डेथ ऑफ दिस आर्ट फॉर्म मीन्स कॉमेडी. ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो. तो ये गलत. ओके, ठीक है सर. यस. अच्छा, अब ये वाला who will tell me that there are 3 options which are wrong and for very specific reasons. So different from individual state conduct warfare operations using DIME model: diplomacy, information, military, and economics. Most states do everything they can do to inflict pain and confusion on their enemies before deploying the military. तो here आप क्या करोगे कि inflict करना चाहोगे पेन और confusion on their enemies मिलिट्री के पहले. जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा, lot of information warfare was happening, right? We were, हमारी जो चैनल्स हैं वो कह रही थी हमने इनके इतने अटैक कर दिए, इतने वो बेसेस उड़ा दिए और इतने प्लेन्स गिरा दिए. In fact, attacks on vectors of information are a well-worn tactic of war and usually the first target when the charge begins. It's common for telecom data and communication networks to be routinely monitored by governments, which is why the open data policies of the web are so concerning to many advocates of privacy and human rights. तो जो डेटा, टेलीकॉम डेटा और कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, इसको तो गवर्नमेंट मॉनिटर करती है कि इस पे से कौन क्या मैसेज निकाल रहा है. तो जो ओपन डेटा पॉलिसी भी कंसर्निंग है. With the worldwide adoption of social media, both governments are getting involved in low-grade information warfare through the use of cyber troops. तो साइबर ट्रूप्स बिठाए देते हैं वो, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाते रहते हैं. According to a study by Oxford Internet Institute, cyber troops are government or political actors tasked with manipulating public opinion online. तो ये एक तरह से बोल सकते हो ट्रोल्स होते हैं. जैसे जो बीजेपी की आईटी टीम है या जो भी एक इनकी सोशल मीडिया टीम होती है, वो बैठ के
अलग अलग चीजें फैलाते रहते हैं, तो वही एक तरह से ये साइबर ट्रूथ्स हो गए. ऑक्सफोर्ड रिसर्च ग्रुप वर एबल टू आइडेंटिफाई 81 कंट्रीज दैट एक्टिव साइबर ट्रूथ ऑपरेशंस यूटिलाइजिंग मेनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्पेंडिंग मिलियंस ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. राइट. सो ये बात की गई डाइम मॉडल की, जहाँ पे कि अटैक करने के पहले जो कंट्री है, वो गवर्नमेंट है, वो काफ़ी सारी चीज़ें फैलाती है थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया. जो साइबर ट्रूथ्स होते हैं वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं. इट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डू. नाउ हु विल टेल मी one by one? Let's start with 4. Why this is wrong? Each one has a specific reason why it is wrong, so that there is no doubt. Initially it looks as if difficult है, लेकिन difficult है, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन yes क्वेश्चन. सर फोर्थ में विद मिलिट्री ऑपरेशंस वो गलत लगा मुझे. यस, टुगेदर विद मिलिट्री ऑपरेशन ये नहीं है. देखो डाइम मॉडल में तो इंफॉर्मेशन ही स्प्रेड कर रहे हो, अभी आपने अटैक नहीं किया है. दिस इज बिफोर मिलिट्री ऑपरेशन. तो दिस टुगेदर विद मिलिट्री ऑपरेशन के कारण फोर्थ गलत हो गया. दूसरा बताइए. यस गोपी. Sir, like I have eliminated all the options. Like none of the options, like they didn't mention about the manipulation of public opinion. So in the first option, it was captured correctly. Okay. So based on that, I have eliminated the remaining and I choose the first one. Okay. ठीक है, fair enough. Anyone else? How could you, I mean, if we have so little more specific thing, देखो सेकंड में क्या लिखा है? फॉलोइंग द डाई मॉडल मेनी गवर्नमेंट्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ ओपन डेटा पॉलिसी टू डिप्लॉय वो मैनिपुलेट डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन. या डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन थोड़ी आपको मैनिपुलेट करनी है. आपको पब्लिक ओपिनियन करनी है, मतलब कि गवर्नमेंट को जो एनिमी है उसको आपको डिस्टेबलाइज करना है. ओके, यू डोंट हैव टू जस्ट डू इट ऑन योर ओन दिस थिंग्स. मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन तो ठीक है, चलो ना. पब्लिक ओपिनियन आप उनकी भी कर सकते हो, दूसरे देश वालों की. डोमेस्टिक की थोड़ी करनी, ये गलत है. गवर्नमेंट प्राइमरली यूज द टाइम मॉडल टू डिप्लॉय साइबर ट्रूथ्स. तो प्राइमरली मतलब क्या होता है? वही तो है, ये तो डाइम मॉडल ही बताया गया इसमें. तो ये प्राइमरली गलत है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए बाहर हो जाएगा. ए इज द ओनली दिस थिंग व्हिच इज करेक्ट. यस कुशाल. सर अगर बी ऑप्शन में डोमेस्टिक नहीं होता तो क्या फिर वो ऑप्शन परफेक्टली कैप्चर कर रहा है क्या? देखो फिर भी इतना 100% नहीं कह रहा है, क्योंकि मेनी गवर्नमेंट्स हैव टेकन एडवांटेज ऑफ ओपन डेटा पॉलिसी टू डिप्लॉय साइबर टूल्स टू मैनिपुलेट यूजिंग टू स्प्रेड. हो भी सकता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ये, बट ये इसके कारण बिल्कुल ही गलत है. सी, एक रीजन अगर सॉलिड हमें मिल जाए तो फिर ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ वेरी सॉलिड रीजन. बिकॉज देखो क्या है कि इसको करने के लिए टाइम बहुत कम है. तो अगर आप बहुत क्लियरली किसी चीज से एलिमिनेट कर सकते हो देन इट कर दो, नहीं तो अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 5 मिनट, और फिर भी हम श्योर नहीं होंगे. ओके ओके, लेट मी गो टू मेनी ऑफ यू हैव क्वेरीज हियर. आशीष. सर थर्ड में जो आपने प्राइमरीली वाला पॉइंट बताया, मैंने उससे नहीं रिजेक्ट करा, रादर इसलिए करा कि गवर्नमेंट्स दो यूज डाइम मॉडल बट नॉट टू डिप्लॉय साइबर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे गड़बड़ लगा मुझे, जबकि इट इज फॉलोड बाय डाइम मॉडल. तो प्राइमरीली तो सही लिखा है. प्राइमरीली यूज द टाइम मॉडल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी और भी तरीके से टाइम मॉडल यूज होता है. ये गलत है ना. ये देखो, ये ऐसा गलत नहीं है. आपको गलत लग रहा है कि मॉडल टू डिप्लॉय ये क्या है, मैं उसमें घुस ही नहीं रहा हूँ आपको पहली बार. देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप उसके एक एक उसको एनालाइज करके और उसमें करने जाओगे तो आई एम श्योर यू विल टेक अ नॉट लेस देन 5 मिनट्स एंड स्टिल यू माइट डू रॉन्ग. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर बहुत क्लियर कुछ गलत चीज दिख जाती है ना, तो ही आप उसको हाथ डालो, नहीं तो मत डालो मेरे हिसाब से. ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यूजिंग द टाइम मॉडल टुगेदर विद मिलिट्री ऑपरेशंस, यहाँ साफ साफ दिख गया है, तो इसको मैंने यही एलिमिनेट किया. आई डोंट इवन नीड टू रीड दिस. सेम थिंग इज ग्रैब गवर्नमेंट प्राइमरीली यूज द टाइम मॉडल. थी प्राइमरीली टाइम मॉडल को यूज ही यही है, प्राइमरी और सेकेंडरी यूज थोड़ी है कोई टाइम मॉडल. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग हियर, कैन नॉट बी सपोर्टेड, सो रिमूव इट. देन डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन. सी, अगर आपको नहीं मिलते हैं इस तरह की चीजें ना, तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट दिस, आई एम टेलिंग यू. यस अक्षिता. सर मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं था. आई हैव अ जनरल डाउट. मतलब आपके हिसाब से व्हाट वुड बी द राइट आरसी सिलेक्शन जो 3 आरसीज करते हैं उनके लिए?
देखो सी, मेरे हिसाब से आपको क्या सूट करता है उस पर डिपेंड करेगा. मे बी if let's say, so maybe somebody could have chosen the peer review, then carnivore conflict, and the externality one. मे बी स्पाइसेस वाला किसी को नहीं, अगर मतलब कलोनियलिज्म और उसका थोड़ा आइडिया नहीं है तो छोड़ सकता है. किसी को अगर एक्सटर्नैलिटी वाला डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब उसकी रीडिंग में ऐसा थोड़ा पढ़ के ही लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, तो वो छोड़ सकता है. तो सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, सी दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस वाज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, बिकॉज आई मीन यू कांट रियली मेक अ लिस्ट ऑफ कि ये, क्योंकि एक कोई भी आउटस्टैंडिंगली डिफिकल्ट रीडेबिलिटी वाली नहीं थी इनमें से. सेम वाज ट्रू फॉर ऑल द डिफरेंट सेक्शंस, different slots this time in 24, that you could not find any RC which could be eliminated on the basis or left out on the basis of difficulty in reading. Okay, they were all topics which generally we've been reading. तो ऐसा नहीं बोल सकते. आपको ये करना चाहिए कि आप चारों 3 कर लो, फिर चौथी करके बाद में देखो कि आपकी सिलेक्शन सही था कि नहीं था और क्यों. कई बार देखो ये फुल प्रूफ प्रोसेस भी नहीं है, बाद में रियलाइज होता है हमको. तो अब जो पकड़ ली उसी को सही करना है. लेकिन हाँ, कई क्वेश्चन में ये मैं लेके बैठ गए, बहुत टाइम लगा रहे हैं, वो नहीं करना है. और इवन विद इन आरसी अगर 2 क्वेश्चन, अब जैसे अगर हम डाउटफुल वाले क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हमें लेट्स से वी वुड हैव गॉट कंफ्यूज, सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वी विल आइडेंटिफाई, इसमें कोई डाउट नहीं है. इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन था, राइट, दिस वन टू में से ये भी था. ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि 2 में से 1 में कंफ्यूजन हो सकता था, है ना. ये वाला तो चलो छोड़ दो अभी. अब ये वाला जो है इसमें नहीं था, इसमें नहीं था. ये दोनों क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट थे, लेकिन ऐसा कोई डाउट में कुछ नहीं था इसमें दोनों में. और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मे बी फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता था, बट सेकंड और इसमें नहीं था. मेरे हिसाब से कोई भी डाउट बाकी क्वेश्चंस में. ये छोड़ दो, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, दिस वाज वेरी क्लियर. एनिमल अटैक्स में अगेन फर्स्ट और सेकंड में मुझे नहीं लगा. थर्ड तो ऑब्वियसली वो डाइसी थिंग, फोर्थ में भी नहीं था, तो ये भी नहीं है. इसमें हो सकता था, लास्ट वाले में हो सकता था. तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे. तो ऐसे में आपको बढ़ जाना चाहिए आगे. डोंट हैंग अराउंड देयर इज व्हाट आई फील. ओके, so let's wind up this one.